ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. I would like to express my heartfelt gratitude to Vicky Prabhu, Vaishali Mataji. Vicky Prabhu's mother is also here, Hare Krishna, and their beautiful daughter Aisha. They have had a long time desire to hear about Srila Prabhupada and to know more about him. So we are going to discuss about how ISKCON was established. So we'll take one very interesting verse from the ninth chapter. You can please repeat after me. This is the last line of this shloka is very well known in India. Why? LIC का स्लोगन है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का स्लोगन है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. We will now read the word to word meaning. Ananya, having no other object. Chintayantaha, concentrating. Mam, on me. Ye, those who. Janaha, persons. Paryupasate, properly worship. Tesham, of them. Nitya, always. Abhiyuktanam, fixed in devotion. Yoga, requirements. Shemam, protection. Vahami, carry. Aham, I. Translation and purport by His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. Yoga Kshemam Vahamyam. Purport. One who is unable to live for a moment without Krishna consciousness cannot but think of Krishna 24 hours a day, being engaged in devotional service by hearing, chanting, remembering, offering prayers, worshipping, serving the lotus feet of the Lord, rendering other services, cultivating friendship, and surrendering fully to the Lord. Such activities are all auspicious and full of spiritual potencies, which make the devotee perfect in self-realization, so that his only desire is to achieve the association of the Supreme Personality of Godhead. Such a devotee undoubtedly approaches the Lord without difficulty. This is called yoga. By the mercy of the Lord, such a devotee never comes back to this material condition of life. Kshema refers to the merciful protection of the Lord. The Lord helps the devotee to achieve Krishna consciousness by yoga. And when he becomes fully Krishna conscious, the Lord protects him from falling down to a miserable condition life. This shloka is the answer to one of the most frequently asked questions. हरे कृष्णा में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है डिवोटीज को, उसका उत्तर ये श्लोक है. और वो प्रश्न क्या है जो पूछा जाता है डिवोटीज को, कि हरे कृष्णा में अगर कोई आ गया, पूरा शरणागत हो गया भगवान को, तो वो खाना कैसे खाएगा, वो कैसे रहेगा, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा. क्या क्या बोलते हैं भगवान यहाँ पर, ट्रांसलेशन में जाओ. क्या बोलते हैं, आई कैरी वॉट दे लैक, आई प्रिजर्व वॉट दे हैव. तो उसका उत्तर क्या है, भगवान देते हैं. कृष्णा प्रोवाइड्स, कृष्णा प्रोवाइड्स वॉट यू लैक, सो यू कैरी वॉट यू लैक एंड यू प्रिजर्व्स वॉट यू हैव. तो अभी हम श्रीला प्रभुपाद के जीवन से पढ़ेंगे, सुनेंगे कैसे उनके पास कुछ भी नहीं था, और आज तो हम
प्रभुपाद अमेरिका में जाते समय कैसे उनके पास कुछ भी नहीं था और कैसे भगवान ने अलग अलग लोगों को भेजा उनके लाइफ में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर अगर कल टाइम मिला तो हम उनके इंडिया में जो उनको इनिशियली स्ट्रगल हुआ 1930s 40s वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर उसका पता नहीं टाइम कितना होगा। पर आज ये डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि श्रीला प्रभुपाद अमेरिका में कैसे गए। पर उसके पहले मुझे एक थोड़ा बैकग्राउंड देना है अबाउट इस्कॉन। श्रीला प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की और उसकी वजह से आज मैं भक्त हूँ, क्योंकि इस्कॉन इंस्टीट्यूशन नहीं होता तो शायद मैं हरे कृष्णा में नहीं आता। मैंने देखा है कुछ भक्तों को कुछ सालों के भक्ति के बाद उनको लगता है कि हमें इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले भक्ति करें, कोई ज़रूरत नहीं। तो जैसे ऐसा कोई बोलता है तो मैं तुरंत अपने आप को प्रश्न पूछता हूँ कि ये डिवोटी हरे कृष्णा में आया कैसे? क्या इसको इस्कॉन के डिवोटीज ढूंढते हुए गए और पकड़े, या वो खुद से पहले ही भक्त था और खुद से आ गया इस्कॉन में? अगर कोई खुद से आ गया, जैसे हमारे आनंद वृंदावन प्रभु, अभी अच्छा है वो इधर नहीं है तो मैं उनको ग्लोरीफाई कर सकता हूँ, उनको शर्म आती है। आपको पता है हरे कृष्णा में आने के पहले वो 16 माला रोज जप करते थे। सोचिए क्या व्यक्ति होंगे। हमको एक महामंत्र हमारे मुंह से नहीं निकलता है, डिवोटीज बोलते रहते हैं बार बार हमको, फिर भी हम एक महामंत्र जपते नहीं है। वो इस्कॉन में आने के पहले पूरा गिरिराज परिक्रमा करते थे, वो महीने में एक बार वृंदावन जाते थे, पूरा नंदगांव बरसाना सब पता था उनको, एकादशी में 64 माला करते थे इस्कॉन के संपर्क में आने के पहले। तो ऐसे व्यक्ति को संस्था की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ढूंढते हुए आए इस्कॉन को। पर अधिकांश लोग कैसे हैं, इस्कॉन हमको ढूंढते हुए आया, इस्कॉन के प्रतिनिधि हमको पकड़े और हमको हरे कृष्णा दिए। तो आप अपने आप को पूछिए, आप आनंदवान प्रभु जैसे हैं? आपने क्या एंट्री मारा, आपका स्टोरी बताया मैंने क्या एंट्री मारा प्रभु आपने, मजा आ गया। तो हम बता रहे थे कि कैसे दो टाइप के डिवोटी इस्कॉन के संपर्क में आते हैं। एक जो पहले ही भक्ति करते थे और वो इस्कॉन को ढूंढते हुए आए, और कुछ लोग थे जो इस्कॉन के लोग गए पकड़े उनको डिवोटी बनाए। तो जो पहले कैटेगरी के डिवोटी है उसमें आनंद प्रभु जैसे लोग हैं जिनको इस्कॉन संस्था की जरूरत नहीं है, पर उनकी नम्रता है कि वो संस्था के प्रति लॉयल है। जैसे वो हर मंगलवार गुरुवार शनिवार को मंदिर में आते हैं, भागवतम क्लास सुनते हैं, जो अभी अभी नवसिकिया भक्त जो हैं, जो नए नए भक्त बने, वो क्लास देते हैं, वो भी ध्यान से सुनते हैं, बड़े ध्यान से प्रामाणिकता से सुनते हैं। तो ये जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं प्रभुपाद के बारे में बोलने के पहले, बहुत जरूरी है समझना। तो आप समझिए इसे कि दो टाइप के डिवोटीज, एक कृष्ण को ढूंढते हुए आए और एक कृष्ण उनको ढूंढते हुए आए। तो अधिकांश लोग, हम लोग जो हैं भाग्यशाली हैं कि कृष्ण हमको ढूंढते हुए आए अपने प्रतिनिधियों के द्वारा, हमको पकड़े, हमको हरे कृष्ण दिया। पर ऐसे लोग हैं जैसे राधानाथ स्वामी महाराज हैं, गौर गोविंद महाराज हैं, वो ढूंढते हुए आए। जैसे गौर गोविंद स्वामी महाराज जब पहली बार प्रभुपाद को मिले, जैसे प्रभुपाद जब लोगों को मिलते थे उनको बोलते थे हरे कृष्णा जप करो, अरे 4 नियम का पालन करो, ऐसा सब बोलते थे। पर जब गौर गोविंद महाराज घूमते घामते वृंदावन में ऐसे आए, वो घर से निकले थे गुरु की खोज में। प्रभुपाद ने जब उनको पहली बार देखा, पहला क्वेश्चन उनको पूछा, आपने सन्यास लिया है क्या? मैं आपको सन्यास देता हूं। मतलब वो अलग स्तर पे है। तो जो डिवोटीज कृष्ण को ढूंढते हुए आए उनको संस्था की जरूरत नहीं है, पर उनकी नम्रता है, वो संस्था के नियमों का पालन करते हैं। पर अधिकांश लोग, हम लोग जो है निम्न वर्ग के हैं, हमें नम्रता रखनी चाहिए कि क्या तपस्या क्या बलिदान के कारण श्रीला प्रभुपाद ने इतना सुंदर संस्था बनाया, जिसके भक्तों ने हम पर असीम कृपा बरसाकर हमें भक्त बनाया, और उसी संस्था के प्रति हमारी कोई परवाह नहीं होती। उसके जो इंस्टीट्यूशन सिस्टम्स के प्रति हम निग्लेक्ट करते हैं। कुछ सालों बाद हमें लगता है कि मैं इंडिपेंडेंटली भक्ति कर सकता हूँ एंड दिस इज द वे। तो हम क्या करते हैं, बहुत बार नकल करते हैं उन भक्तों की जो कृष्ण के बारे में बचपन से मग्न थे। ये बहुत बड़ा गलती हम कर रहे हैं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन श्रीला प्रभुपाद ने बनाया इस्कॉन, उसके बनाने के 3 साल बाद उन्होंने जीबीसी करके बनाया। जीबीसी इज गवर्निंग बॉडी कमीशन। श्रीला प्रभुपाद का जीनियस देखिए, जीनियस।
श्रील प्रभुपाद के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, वो इतने बड़े सन्यासी थे, उन्होंने 60,000 शिष्य बनाया, सोचिए। और पूरे इंडिया में सब जगह गौड़ीय मठ। वो 5 साल की उम्र में गीता पर प्रवचन देते थे। इंग्लिश में उनका इतना नॉलेज था कि जो प्रोफेसर सूतर्स, जो ऑक्सफोर्ड के इंग्लिश के एचओडी थे, ऑक्सफोर्ड के इंग्लिश के चैंपियन थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, प्रभुपाद के गुरु महाराज। इनका इंग्लिश का नॉलेज इतना पावरफुल था कि ऑक्सफोर्ड के टॉप प्रोफेसर ने कमेंट दिया कि इंग्लिश मेरी मातृभाषा है कि इनकी मातृभाषा है। वो इतने बिविल्डर हो गया, अरे इनका इंग्लिश इतना अच्छा कैसे। और 5 साल की उम्र में गीता पर प्रवचन देते थे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया। इतने ऊंच श्रेणी के भक्त, भगवान विष्णु के अंश के अवतार। इन्हें पता था कि ये इनका जब तिरोभाव होगा, ये जब चले जाएंगे इस जगत से, हरे कृष्ण का प्रचार कैसे होगा। तो इन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि आप एक गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाओ, जीबीसी। क्योंकि उस समय इंडियन रेलवेज में गवर्निंग बॉडी कमीशन था जो इंडियन रेलवेज को संभालता था। क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने 2 चीजें मतलब बहुत प्रोफेशनली किया, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग उसको रिफ्यूज भी करते हैं। जैसे इंडियन पोस्टल सर्विसेज और इंडियन रेलवेज का उन्होंने अच्छा सिस्टम बनाया जो आज तक चल रहा है, ऐसा बोलते हैं। सही है क्या संदीप प्रभु? मुझे पता नहीं मैंने बोल दिया। क्लैरिफिकेशन के लिए प्रभु जी के पास जाइए, उनको सब पता है। बट एनीवे, तो दे वर वेरी प्रोफेशनल। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला इनका जो सिस्टम है गवर्निंग बॉडी कमीशन, ये जो थोड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जहाँ पे सब डिवोटी साथ में आते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं और मीटिंग करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं, और फिर रेजोल्यूशन पास होता है और संस्था चलेगा। ऐसा करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सबको समझाया। सबने कहा हाँ प्रभुपाद करेंगे करेंगे। पर कैसे है, आध्यात्मिक संस्था में आध्यात्मिक व्यक्ति का जो एक तेज और एक इन्फ्लुएंस रहता है। इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं चलता। इंडिया में आप लोगों का कैसा मनोभाव रहता है कि आप बस बोलो हम करेंगे। दे वांट अ स्पिरिचुअल वन हेड वन अथॉरिटी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आदेश देते थे, भक्त लोग बड़े आनंद से उसको निभाते थे। पर जैसे ही उनका तिरोभाव हुआ तो जीबीसी बन गया, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था। और जीबीसी 15 दिन ही चला, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो गए हाउ टू, क्योंकि आदत नहीं है ना डेमोक्रेसी का, और इंडिया में स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में चलता नहीं ऐसा। तो कंफ्यूज हो गए और वो टूट गया। और जैसे ही जीबीसी नहीं बना, वो जो इन्होंने जो संस्था एस्टैब्लिश किया तो पूरा बिखर गया, सब के सब पूरा ऐसा स्कैटर हो गया और प्रचार बंद हो गया। श्रील प्रभुपाद का जीनियस है कि उन्होंने जीबीसी बनाया और उसको ऑपरेशनल किया जब वो जीवित थे। उन्होंने वेट नहीं किया कि मेरे जाने के बाद आप चालू करो। जब वो जीवित थे तभी उन्होंने स्टार्ट किया। ये उनका जीनियस है। और उतना ही नहीं, वो उसके मीटिंग में जाते थे एज वन ऑफ द मेंबर्स, ही इज टू अटेंड, और कभी कभी वोटिंग में वो भी हाथ उठाते थे। ये उनका विजन फॉर लॉन्ग टर्म प्रीचिंग। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद भी 50 साल हो गए, फिर भी इस्कॉन संस्था चल रहा है। ये उनका, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज दिस ग्रेटेस्ट विजन, वन ऑफ द। क्या क्या दिमाग लगाया उन्होंने, सोचो। उन्होंने देखा ना, उनके गुरु महाराज ने ऐसा इच्छा प्रकट किया था, पर शिष्य लोग नहीं कर पाए, तो इन्होंने शिष्यों को ट्रेनिंग उसमें भी दिया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि संस्था की जरूरत है भक्ति के लिए अधिकांश लोगों को। केवल कुछ लोग जो पहले से कृष्ण की खोज में निकले हैं, जैसे जर्नी होम आप पढ़ोगे, या प्रभु जी, ऐसे बहुत कुछ लोग हैं ऐसे जिनको जरूरत नहीं है। पर अधिकांश लोग, हम लोग कैसे हैं, डिवोटीज पकड़ते हैं, प्रोग्राम में बुलाते हैं, एसएमएस भेजते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, यात्रा में लेके जाते हैं। चाइनीज सेइंग है, चाइना में बोलते हैं कि घोड़े को पानी पिलाने के लिए 7 लोग लगता है, ऐसा बोलते हैं चाइना में। मतलब एक व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों का एक मिली भगत साजिश के कारण हम लोग डिवोटी बने, है ना, अधिकांश लोग। तो कुछ साल बाद हमारा दिमाग थोड़ा खराब होता है, हमको लगता है कि अभी मैं एडवांस हो गया हूं, हमको जीबीसी बीबीसी कुछ नहीं चाहिए। और उस समय हम अपना मनोरथेना सती धावतो भई भक्ति करते हैं।
जैसे हमारे मंदिर में कितना सुंदर सिस्टम बना है, काउंसलर सिस्टम, फिर मेंटर सिस्टम। अभी अभी नीलकृष्ण प्रभु हमारे इस प्रोग्राम के जो ओनर हैं और उनके को ओनर उनके साथ हैं रासपरायण प्रभु। अभी नीलकृष्ण प्रभु आपको लगता है ऐसा कर रहे हैं, वो इज नॉट फॉलोइंग मी और इज नॉट अंडर मी, इज रिपोर्टिंग टू हुम? टेम्पल हुम? दिस बॉडी, व्हाट इज द बॉडी कॉल्ड? CDD, कांग्रेगेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। राधा गोपीनाथ प्रभु इज द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। और उसका भी 2 बॉडी है, रीजनल है, कोर है, एंड ही जस्ट फॉलोज दैट। और उनके जो को ओनर है रासपरायण प्रभु, ही इज अपॉइंटेड बाय द टेम्पल, ही इज अ काउंसलर, so they are not doing independently and whimsically. And I am a freelancer. कल मैंने भागवत सप्ताह किया क्योंकि मेरा हो गया, अभी रिटायरमेंट हो गया, but I keep coming here because they keep catching me, one from both sides. Anyway, that's a moot point, but the real point I'm trying to make is that there are systems made so that preaching can expand. और भक्तिवेदांत ठाकुर ने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, और ये प्रभुपाद ने पकड़ लिया। भक्तिवेदांत ठाकुर ने कहा कि ओशन है, समुद्र है, और एक झरना है। झरने को समुद्र तक जाना है, वो अपने आप नहीं जा पाता, उसको नदी का सहारा लेना पड़ता है, और नदी के सहारे से वो समुद्र में जाता है। अगर वो झरना, अगर एक झरने में बहुत शक्ति है, बहुत तेज है, तो वो अपने आप चला जाता है। पर अगर झरने में उतना शक्ति नहीं है तो झरने को सहारा लगता है, किसका? नदी का सहारा लगता है। तो उसी प्रकार झरने का तुलना किया गया है एक भक्त से जो हरे कृष्णा में आता है, और समुद्र कृष्ण के साथ, और नदी संस्था, इंस्टीट्यूशन। संस्था मतलब संस्था के नियम, उसूल, कायदे, कानून, सिस्टम्स, प्रोटेक्शन। तो जो झरना है अर्थात भक्त है, अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो उसको नदी की जरूरत नहीं है, वो जा सकता है समुद्र के पास। पर सामान्य भक्तों के लिए, भगवान तक जाने के लिए, वो नदी का सहारे से अर्थात एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप और अरेंजमेंट्स के सहारे से हम यात्रा में जा सकते हैं। जैसे मायापुर यात्रा में मैं जाने वाला नहीं था, आप में से कुछ लोग मायापुर यात्रा आए थे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा नीलकृष्ण प्रभु और रासपरायण प्रभु, हु इज द ओनर ऑफ दिस यात्रा? एंड बोथ ऑफ देम सेड वी ओन इट अप। नीलकृष्ण प्रभु ने बोला आई विल ओन इट अप एंड आई विल रिपोर्ट टू CDD। एंड प्रभु जी ने कहा आई ओन इट अप, आई कैन नॉट कम बिकॉज ऑफ सम ऑब्लिगेशन, बट माई वाइफ विल कम, दैट इज एज गुड। तो हो गया। फिर उन्होंने एक छोटा सा एक प्राइवेट, नीलकृष्ण प्रभु ने कहा हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं जो सेवा करते हैं, तो सेवक यात्रा है, आप आएंगे? तो मैंने कहा हूम आर यू रिपोर्टिंग टू? रासपरायण प्रभु, मिली भगत, नो, एंड आई नो दे आर रिप्रेजेंटिंग, सो आई इमीडिएटली सेड ओके, यू अंडरस्टैंड। तो हम जो भी करते हैं एक संस्था के अंडर हम करते हैं। जैसे कुछ लोग मुझे बुलाते हैं, प्रभु जी आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं क्या? मैं तुरंत बोलता हूँ कि प्राइवेट प्रोग्राम है तो आपके घर पे करूंगा, पब्लिक प्लेस में है तो इट हैज टू बी पब्लिक प्रोग्राम होगा। जब भी मेरा पब्लिक अपीयरेंस होगा, इट हैज टू बी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ISKCON एंड इट हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय समबडी इन ISKCON। तो ऐसा मेरे कुछ नियम है। तो मैं पॉइंट ये बोलना चाहता हूं कि ये हम लोग जो है ना विम्सिकली नहीं कर रहे हैं, इसका हिस्ट्री है भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के समय से। तो देयरफॉर यू हैव टू आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली टुडे, आज आप पूछिए, आप ISKCON में आए अपने आप से कि आपको ISKCON आपके पीछे पड़ा था, devotees? And if you are humble, then you will understand that we need to be connected to an institution. और श्रीला प्रभुपाद का जीनियस है, उनको इंडिया में केवल फेलियर हुआ, जो हम कल या नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इतने फेलियर के बाद वो अमेरिका में जाते हैं जहां पे उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, और वहां पे जाके वो ISKCON संस्था की स्थापना करते हैं। ये तो कंप्लीटली इलॉजिकल। तो जब आप प्रभुपाद की स्टोरी सुनोगे, आज और कल 2 दिन का सेमिनार प्रभु जी ने ऑर्गेनाइज किया है, तो ये 2 दिन के सेमिनार में आप ध्यान से सुनिए कि आपको समझेगा कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो परंपरा में आते हैं, प्रामाणिक परंपरा में, उनके जीवन में कुछ अलग नियम लागू होते हैं और हमारे जीवन में कुछ अलग नियम लागू होते हैं। दे डोंट फॉलो आवर लॉस। क्योंकि अभी आप सुनोगे तो आपको लगेगा सब इलॉजिकल है, ऐसे कैसे हो गया? एक बूढ़ा आदमी, 71 साल का आदमी जा रहा है अमेरिका, वो भी जहाज में, हवाई जहाज नहीं, बोट, शिप, और जेब में कुछ पैसा भी नहीं है,
2 घंटे में कितना खत्म हो सकता है उतना पैसा था, 40 रुपये तक का था, 35 to 40 रुपीज वर्थ, उस समय का $8, $7-8। तो हाउ इट हैपेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूल आई एम सेइंग। उनका लॉज और हमारा लॉज अलग है। जैसे आप ट्रैफिक में जा रहे हो, आपका गाड़ी अटक गया, लाल सिग्नल में आप रुके हो, क्यों रुक गए आपका गाड़ी? क्योंकि आप गाड़ी में हो तो आपको गाड़ी का नियम, ट्रैफिक लॉ फॉलो करना होगा। तभी आप ये नहीं बोल सकते अरे मेरे ऊपर प्लेन चल रहा है, वो क्यों नहीं रुक रहा है लाल सिग्नल। प्लेन का रूल अलग है, प्लेन का अलग सिस्टम है ना। तो उसी प्रकार हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नियम है, कुछ सिस्टम है। बट प्योर डिवोटीज, एडवांस्ड वैष्णव, दे डोंट नीड ऑल दिस, बट आउट ऑफ देयर कंपैशन, उनकी कृपा है, अनुकंपा है कि वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं, इस्कॉन, जीबीसी, काउंसलर बॉडी। जैसे राधानाथ स्वामी को जरूरत नहीं है, वो तो 93 में सब छोड़ के लंदन में जाके अपने दोस्त के मठ में बैठ के जब भजन कर रहे थे, तो हम लोग लेके आए, महाराज प्लीज आइए आइए आइए, आप ही यहाँ के मठाधीश बनिए। महाराज ने कहा सिस्टम बनाओ, फिर तो सिस्टम बनाए, काउंसलर ये वो। फिर महाराज ने कहा देन आई विल बी पार्ट ऑफ दिस। सो इट्स देयर कंपैशन, इट्स देयर काइंडनेस, बट दे डोंट नीड टू फॉलो ऑल दिस। तो श्रीला प्रभुपाद की एक ही इच्छा थी कि हम सब कृष्ण की स्तुति करें, बट कृष्ण भगवान देखते हैं कि क्या हम उनके भक्त की स्तुति करते हैं कि नहीं। तो आज हमने अभी जो भी किया पिछले 10-15 मिनट में, क्या किया हमने? भगवान के शुद्ध भक्ति की प्रशंसा की। और यही भगवान ने आदि पुराण में कहा है, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम च ये भक्तास ते में भक्ता तमाम था। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ए में भक्त जना पार्था, जो ये घोषणा करता है कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं, वो क्या है? न में भक्तश्च ते जना, वो मेरा भक्त नहीं है। मद भक्ता नाम चाहिए भक्तास, जो मेरे भक्तों का भक्त करके अपने आप को घोषणा करता है, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, ते में भक्त तमाम था, वो वास्तव में मेरा भक्त है। तो अभी हम श्रीला प्रभुपाद की स्तुति कर रहे हैं, तो हम क्या बन रहे हैं? कृष्ण का भक्त बन रहे हैं, क्योंकि कृष्णा विल बी हैप्पी व्हेन हिज डिवोटी इज ग्लोरीफाइड। यू हैव दोस वर्सेस आई हैड गिवन, यस। तो आज हम श्रीला प्रभुपाद का फेलियर्स डिस्कस करेंगे। क्या फेलियर? जनरली लोग क्या बोलते हैं? सक्सेस सक्सेस सक्सेस। सक्सेस अट्रैक्ट्स एवरीवन, राइट? वी वांट टू हियर सक्सेस स्टोरीज। तो आज हम श्रीला प्रभुपाद के जीवन में क्या क्या सेटबैक्स आए वो डिस्कस करेंगे। फिर आपको समझेगा अरे बाप रे, इतनी बड़ी संस्था कैसे आ गई। तो द होल एजेंडा, जैसे हम लेक्चर कभी भी देते हैं तो हम एक स्पीकर को अपने आप को बोलना पड़ता है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द क्लास। सो द मेन मैसेज वी वांट टू शेयर टुडे is to become grateful for what we have got based on what all Srila Prabhupada had to go through. तो ISKCON कैसे शुरू हुआ उसके लिए एक सुंदर श्लोक मैं आपको पहले बताता हूँ। ये भागवतम से है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विधु सैव साधुषो कृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। जो अटैचमेंट है, सब जानते हैं विद्वान लोग कि इट इज अजरम पाशम, एक वो बॉन्डेज है। हमें अटैचमेंट जहाँ पे भी रहता है वो हमें खत्म कर देता है। जैसे आजकल लोग फेसबुक से अटैच्ड है, व्हाट्सएप से अटैच्ड, यू आर अटैच्ड टू मटेरियल थिंग्स, इट डिस्ट्रॉयज यू। स एव साधुषो कृतो, अगर वही आसक्ति हम भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति रखेंगे, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। तो हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा प्रभुपाद के प्रति अटैचमेंट बढ़े, क्योंकि वो साधु हैं, और साधु के प्रति अटैचमेंट जब बढ़ेगा तो मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। जैसे अभी साधु का अटैचमेंट का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल मतलब हियरिंग। और कलयुग में क्या कृपा है भगवान की, ऐसा ऑडियो डिवाइसेस। जैसे मेरे पास अभी एक भगवान की कृपा से एक
मोबाइल जिसका स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, अच्छा है, तो उसमें मेरे गुरु महाराज के लेक्चर्स हैं, वो भी सिलेक्टेड लेक्चर्स, 5 स्टार 1 2 3 4, तो वो सुन सुन के वो चलता रहता है बैकग्राउंड में। तो अभी मेरे को वो याद हो गया 5 स्टार 4 में कौन सा लेक्चर है, 5 स्टार 2 में क्या है, वो प्रभु जी ने दिया था, आनंदमान प्रभु ने, क्या क्या लेक्चर, जन्माष्टमी का लेक्चर है, ये लेक्चर है। तो दैट इज द वे वी गेट अटैच्ड बाय हियरिंग। तो प्रभुपाद के भी इतने लेक्चर्स हैं, वीडियोज हैं, अभी एक मूवी भी आया था 1.5 घंटे का, तो इससे हम अटैच होते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने 1922 में ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? इंग्लिश लैंग्वेज में प्रचार करो पूरे विश्व भर में। और उसके ऊपर मेडिटेट कर रहे थे श्रीला प्रभुपाद कितने साल तक? नेक्स्ट 43 ईयर्स। 43 ईयर्स के बाद वो जा पाए वेस्ट में, सोचिए, वो जा ही नहीं पाए। 40 भी ऑर्डर दिया आप ऐसा करो, और 43 ईयर्स के बाद पूरा किया। तो यही सुन के मैं पहले हिल गया, दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो अभी 43 ईयर्स के बाद अभी उनको चांस मिल रहा है उनके गुरु का ऑर्डर पूरा करने के लिए। और ये 43 ईयर्स तक क्या हुआ वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर अभी प्रभुपाद अमेरिका के लिए निकले हैं एक जहाज में, कार्गो शिप, वो भी नॉट पैसेंजर शिप। और अभी जो प्रभुपाद करने जा रहे हैं ये लॉजिक दृष्टि से आप देखोगे, मटेरियल दृष्टि से देखोगे तो कंप्लीटली फुलिश, मूर्खता है। क्यों? देखिए, एक बूढ़े से, अब अभी भौतिक दृष्टि से देखिए, अब क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से बता रहे हैं कैसे इलॉजिकल है, आप अपने आप को पूछिए, क्या भौतिक लॉजिक तर्क वितर्क लगाकर क्या आप ये कर सकते हैं? या आपके विश्लेषण के अनुसार सक्सेस परसेंटेज इस प्रोजेक्ट का क्या होगा? जहां पर ये सब फैक्टर्स मैं आपको बोलने वाला हूं। अगर ये सब फैक्टर्स सुनने के बाद आप एक निष्पक्ष रूप में मुझे बताइए कि आपको लगता है कि इसका परसेंटेज, सक्सेस परसेंटेज 1% है या 2% है या 0%? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बूढ़े से सन्यासी अमेरिका में जा रहे हैं कार्गो शिप में, और मिशन क्या है? वेग। एब्स्ट्रैक्ट मिशन है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कृष्ण भक्ति का प्रचार। और मोस्ट फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड, ये जो सन्यासी जा रहे हैं प्रभुपाद जी, इनको अमेरिका के बारे में कुछ पता नहीं, नो प्रायर नॉलेज ऑफ अमेरिका। ही हैज नॉलेज ऑफ व्हाट? कृष्णा। अभी आप जाओगे किधर भी पहली बार, मैं तो जब भी किधर पहली बार जाता हूं तो विकिपीडिया में पहले वो देश के बारे में पढ़ लेता हूं, क्या कुछ तो उनका कल्चर क्या है वहां पे, लोग हाउ दे से, व्हाट दे से। Prabhupada has no knowledge of America and is going to America. अभी ठीक है, हम लोग कभी कभी जाते हैं, किधर भी जाते हैं तो हमको उधर बेस रहता है, हमारा एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, फ़ोन करते हैं, ईमेल भेजते हैं कि हम आने वाले हैं। तो प्रभुपाद का भी एक कांटेक्ट था, बट एक्चुअली इफ यू सी, प्रभुपाद का कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं था अमेरिका में। ऐसा नहीं था कि लोग तैयार वेट कर रहे थे, प्रभुपाद आइए, नहीं, नो बेस। हमारा क्या है, हर जगह जाते हैं प्रीचिंग के लिए तो उधर हमारा सेंटर होता है, एक्सटेंशन सेंटर, सैटेलाइट सेंटर, टेम्पल, प्रीचिंग सेंटर, अलग अलग हमारा टेक्निकल डेफिनेशंस है। तो आप देखिए प्रभुपाद जा रहे हैं वहाँ पे, क्या बेस है, क्या सपोर्ट है, क्या सेंटर है, कुछ नहीं। तो जा रहे हैं बिंदास, कुछ डर नहीं। 70-year-old मैन, एक्चुअली 71 he turned. He was had completed 70. What is the logic? Impossible. ठीक है, अभी ये हो गया, ठीक है, बेस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, सब ठीक है, नॉलेज भी नहीं है अमेरिका का, कोई बात नहीं। अरे जेब में पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, पैसा है तो किधर भी कुछ भी कर सकते हैं। पर ये स्वामी जी जा रहे हैं, जेब में पैसा भी नहीं, ये क्या लॉजिक है बाबा? अभी क्रिश्चियन मिशनरी जाते हैं गांव गांव में, अफ्रीका में, किधर किधर जाते हैं, उनको भी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता, पर पैसा रहता है, स्पॉन्सर रहता है। और ये स्वामी जी जा रहे हैं, जेब में उनके पास जो पैसा था दैट वाज, वो केवल कुछ 3-4 घंटों में खर्च होने लायक पैसा था बस। तो ये पैसा लेकर वो जा रहे, मतलब बेसिकली नो मनी, नो सेंटर,
नो प्लान ऑफ एक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, नो क्लियर प्लान ऑफ एक्शन। हमारा पूरा क्लियर रहता है प्लान ऑफ एक्शन। पहले हम पावर ऑफ मिनी हैबिट सेमिनार करेंगे, फिर उसके एक हफ्ते बाद जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स करेंगे, फिर उसके बाद उनको ये वीकली प्रोग्राम में लाएंगे, फिर उसके बाद हमको यात्रा में लेके जाएंगे, फिर उनको माला देंगे और फिर डिवोटी बनाएंगे, तिलक लगाएंगे, हरि बोल, ऐसा सब हमारा स्ट्रैटेजी रहता है। पर प्रॉपर तो कोई प्लान नहीं, क्या करेंगे जाके, कौन सा प्रोग्राम करेंगे, कौन से इंस्टीट्यूशन में, कौन से कॉलेज में, कौन सा कोर्स कैसे करेंगे, नो प्रॉस्पेक्टस, नथिंग। He is going with no clear plan of action, with no money, no support, no knowledge of US. Isn't it fascinating? तो ये सब सुनने के बाद आप अपने आप को पूछिए, लॉजिकली मटेरियली सक्सेस परसेंटेज क्या हो। जैसे प्रीचिंग में ना हमेशा स्ट्रैटेजी रहता है, पर जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो ऐसा स्ट्रैटेजी वैटेजी नहीं बनाते। वो भगवान उनको लेके, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में क्या कहा, उनका नियम अलग है, उनका एरोप्लेन वाला नियम है, हमारा ट्रैफिक का है, इसीलिए हम भौतिक दृष्टि से समझ नहीं सकते। तो अलग लेवल पे चल रहा है, इसीलिए आप श्रीला प्रभुपाद तो कभी देखोगे ना लेक्चर में, कभी नोट्स नहीं होता है, हम लोग सब स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जैसे एम्स्टरडैम में मैं गया था अभी, तो वहाँ पे मंदिर के जो बहुत सीनियर डिवोटी है, बहुत बड़े, उनको पूछा आप डिवोटी कैसे बने, उनका स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। वो बोल रहे थे कि जब वो यंग लड़के थे तो हरे कृष्णा मंदिर में आते थे शाम को ऐसे घूमते घामते, तो वहाँ का जो एक पुजारी था, डिवोटी लीडर, वो रात को दर्शन बंद होने के बाद उनके पास एक बड़ा कप में स्वीट राइस, खीर स्पेशल जो भगवान को भोग चढ़ता है, वो उनको साइड में ला के देता था, अरे इसको खाओ, महाप्रसाद है, मजा आएगा। और वो खाता था, उसको इतना उस पर किक मिलता था, उसका टेस्ट, वाह व्हाट अ टेस्ट, और पूरा ग्लास बड़ा, पूरा संतुष्ट हो जाता था। तो फिर कुछ दिनों बाद वापस आता था दर्शन के लिए, दर्शन करता था, फिर जैसे बंद होता था, फिर जाने का सोचता था, तो वापस वही डिवोटी आ जाता था, वही दरवाजे पे, पूरा टाइमिंग के साथ, पूरा मतलब प्लानिंग किया रहेगा सब, जैसे एंट्री किया होगा, किसी ने देखा होगा, मैसेज पहुंचाया होगा, कुछ तो किया रहेगा। तो जब वो गेट पे जा रहा है तो वापस वही डिवोटी, वेलकम टू आवर टेम्पल, प्लीज टेक दिस स्वीट राइस फॉर यू, अरे थैंक यू, खाया वो मस्त। फिर उसको स्वीट राइस ने अट्रैक्ट किया तो रोज आने लगा, तो रोज शाम को ये प्रभु जी आके आपके लिए खीर, खुश हो गया। तो एक दिन उस ऐसा 1 साल चला, बीच बीच में आता था जाता था, जब भी आता था वही डिवोटी आके उसको खीर देता था प्रसाद, खुश हो गया। तो ऐसा फिर वो भक्ति भी करने लगा, माला भी करने लगा, थोड़ा सीरियस हो गया। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं अभी मंदिर में फुल टाइम ज्वाइन करता हूँ। तो उसने बताया उनको, डिवोटीज को, सबने कहा वेरी गुड। तो जिस दिन ज्वाइन करने वाला था, तो उस दिन आया था वो रात को, और वो भी दर्शन कर रहा था। तो प्रार्थना किया कि कल सुबह से मेरा, अभी आई हैव ज्वाइन जस्ट नाउ, आज रात को सो जाऊंगा, एंड टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम लाइक पार्ट ऑफ दिस टेम्पल, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। ऐसा करके दंडवत करके उठा, तो वापस वो डिवोटी आ गया खीर, तो उसने वापस थैंक यू। तो खाने वाला था, तो डिवोटी ने कहा नहीं 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 नहीं, आपको दिया है, आप देखो वो लड़का आ रहा है, उसको रोज देने का उसको रोज देने का आपका काम है। तो उसने कहा अरे बाप रे, तभी मुझे स्ट्रैटेजी समझा, बट बाय दैट टाइम ही हैड ऑलरेडी गॉट अटैच्ड टू कृष्णा। तो श्रीला प्रभुपाद का ऐसा कुछ प्लान नहीं था एक्शन का, ऐसा उन्होंने एनालाइज नहीं किया, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त है, प्यार बांटते हैं, बस कृष्णा कृष्णा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं जो एक जन्माष्टमी का लेक्चर सुन रहा था, 5 स्टार 4 में, वो सेकेंड लास्ट लेक्चर, क्या क्या एनालिसिस, ऐसा मैंने कोई शास्त्र में नहीं पढ़ा है, ऐसा डीप रियलाइजेशन ऑन सैक्रिफाइस, कैसे वसुदेव देवकी ने कैसे बच्चे और पैदा किए। व्हेन आई हर्ड दैट, ऐसा कंप्लीटली, और उसके पहले का एक लेक्चर है उसी सीरीज में ऑन फॉल डाउन कैसे होता है। तो व्हेन यू हियर ऑल दिस लेक्चर्स यू फील ये कहाँ से नॉलेज आ रहा है, ये मटेरियल एनालिसिस हो ही नहीं सकता है, ये अलग शक्ति का प्रभाव है, ये भौतिक लॉजिक से नहीं समझ सकते। क्योंकि ये महाराज भी हमारे, वो भी कैसे आए इंडिया में घूमते घामते, क्या कॉन्फिडेंस है अपने भगवान के ऊपर, निकल गए भगवान की खोज में। दे आर फ्लाइंग अ प्लेन, देयर लॉज आर डिफरेंट, वी कांट इमिटेट देम। तो हमको स्ट्रैटेजी करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मूर्ख हैं,
बुद्धि नहीं है हमको। तो प्रभुपाद कहते थे कि ये सब उनका डिस्क्वालिफिकेशन था मटीरियली, पैसा नहीं, सपोर्ट नहीं। एंड देन यू नो व्हाट प्रभुपाद सेड, आई केम टू न्यूयॉर्क एंड आई यूज्ड टू लॉइटर एमलेसली। हिंदी में कैसे बोलते हैं पता नहीं, मैं ऐसा एमलेस, ऐसा घूमता था, बस कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसे घूमते रहते थे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। फिर प्रभुपाद कहां जाके रुके पता है? अभी इतना सब सुन लिया आपने, फिर भी सक्सेस मिला, राइट? इस्कॉन एस्टैब्लिश हुआ। अभी तक जो मैंने बताया वो तो कुछ भी नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। आगे का डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे। प्रभुपाद अमेरिका में भी गए, न्यूयॉर्क में भी गए, तो उधर कहां गए? सबसे अच्छे एरिया में नहीं गए रहने के लिए, वहां पे गए बौरी, बौरी करके, जो यहाँ का बोलो धारावी स्लम बोलो या कमातीपुरा एरिया बोलो, ऐसा टाइप का एरिया में जाके वहां पे रहे। बौरी वॉज द मोस्ट डिग्रेडेड प्लेस इन अमेरिका एट दैट टाइम। सबसे बदनाम जगह था अमेरिका में। उधर जाके उन्होंने एक छोटा सा रूम लिया, क्योंकि कहीं और मिल ही नहीं रहा था, पैसा ही नहीं है। तो व्हाट इज द सक्सेस परसेंटेज आफ्टर हियरिंग ऑल दिस? ठीक है, ये इतना सब हो गया, सपोर्ट नहीं, नॉलेज नहीं, पैसा नहीं, प्लान ऑफ एक्शन नहीं, ठीक है, एमलेसली मूविंग अराउंड। इफ दिस इज नॉट सफिशिएंट, लिविंग इन बौरी, बौरी भी अगर आप इंप्रेस नहीं हुए तो आपको अभी समझना चाहिए कौन से समय में गए प्रभुपाद अमेरिका में। वो 1960s में गए, 1965। 1965 क्या समय था इतिहास में, मानव समाज के इतिहास में? 1960s का जो डिकेड है वो ड्रग्स और काउंटर कल्चर मूवमेंट का टाइम था। सब युवा पीढ़ी ड्रग्स लेते थे, एंड इट वाज अ टाइम व्हेन काउंटर कल्चर, हमको कल्चर को तोड़ना है, कल्चर के नियमों का उल्लंघन करना है। और उस समय श्रीला प्रभुपाद जाके इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर दे रहे। ये तो क्या है, ये तो कोई लॉजिक, सब लॉजिक को बीट करता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। काउंटर कल्चर मूवमेंट ऑफिशियल नाम है, और उसमें जाके ट्रेडिशनल वैदिक कल्चर, ठीक है, ये भी ठीक है, पर वेयर डिड ही गो? He went to the heart of 1960s counter culture movement, which is the East Village. न्यूयॉर्क में बौरी के बाद वो ईस्ट विलेज में गए, जहां पर ये सबसे ज्यादा प्रचलित था कल्चर को तोड़ने का। मतलब कैसा है, अगर तूफान आ रहा है समुद्र के तट पे, भयंकर सुनामी आने वाला है, और कोई कहता है ठीक है मैं जाके, वो सुनामी आने वाला है ना, हाँ उधर जाके मैं घर बनाता हूं। समुद्र के तट पे जाके कोई घर बनाने लगे, और तूफान आने वाला है, सब मेटलर्जी रिपोर्ट सब आ गया है, और अभी आने वाला है कुछ देर में, कोई कॉन्फिडेंटली जाके उधर घर बनाएगा, तो क्या कहेंगे आप उसको? पागल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। तो प्रभुपाद जी जा रहे हैं ईस्ट विलेज में, और लोग पूछ रहे हैं आप क्या करने जा रहे हैं? मैं इंडियन वैदिक कल्चर, कृष्णा कॉन्शियसनेस देने जा रहा हूं। दिस इज कंप्लीटली इलॉजिकल। ठीक है, अभी वहां पे गए तो भी, अभी देखिए, पैसा नहीं, नॉलेज नहीं, सपोर्ट नहीं, प्लान ऑफ एक्शन नहीं, मूविंग अराउंड एमलेसली, और बौरी में गए, फिर ईस्ट विलेज में गए, और कभी गए 1960s में, विच इज द एज ऑफ ड्रग्स एंड काउंटर कल्चर। ये सब ठीक है, में से ठीक है, साइक्लोन में घर बनाया तो भी चल जाएगा शायद, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डिड ही प्रीच। अगर उधर जाके उनको बोला होता ठीक है थोड़ा व्हाट यू आर डूइंग इज ओके, तो भी चलता, यू वुड हैव बीन एक्सेप्टेड। उधर जाके उनको बोल रहे हैं इलिसिट सेक्स नहीं करने का, और वो लोगों का लाइफ पूरा उसी के ऊपर था। इलिसिट सेक्स वाज देयर, जस्ट लाइक यू नो यू पिक अप योर मोबाइल विदाउट थिंकिंग। फॉर देम हैविंग इलिसिट सेक्स रिलेशनशिप्स वाज सो कैजुअल, और उधर जाके इलिसिट सेक्स को पूरा खंडन किया। दूसरा, ड्रग्स नहीं लेने का, ड्रग्स एंड इलिसिट सेक्स उनका लाइफ था, और प्रभुपाद बिंदास बोलते थे वो, फिर भी लोग आने लगे। तो ये मैजिक नहीं है तो क्या है? और फिर स्पोक अबाउट प्यूरिटी ऑफ माइंड एंड डिवोशन टू कृष्णा। इवन दिस इज ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज whom did he preach to? किसको उन्होंने ज्ञान दिया? नव युवकों को ज्ञान दिया, यंग बॉयज एंड गर्ल्स
उस समय के उनके लाइफ का फिलॉसफी दो था। एक, डू योर ओन थिंग, डोंट लिसन टू अथॉरिटी। पहला क्या था, अपना जैसा मन बोलता है वैसा करो। और दूसरा था कि जो 30 साल के ऊपर का व्यक्ति है उसकी बातों को कभी सुनने का नहीं। डोंट बिलीव एनीबडी अबव 30। दिस वॉज अ वेल नोन रूल। डू योर ओन थिंग, डोंट बिलीव एनीबडी अबव 30। एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है ये सब हो गया, अभी ये व्यक्ति जो जा रहे हैं अमेरिका में, ये कौन है? अरे एक बूढ़े स्वामी जी हैं जो 19th सेंचुरी के 1896 में उनका जन्म हुआ, 1966 में जा रहे हैं। मतलब इज फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, ब्रिटिश इरा ऑफ कैलकाटा, अमेरिका में जा रहे हैं मॉडर्न टाइम में। और व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट इज अ रिमार्केबल स्टोरी ऑफ फेथ, डिटर्मिनेशन एंड सक्सेस विच इज बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन। और 500 साल बाद मुझे पूरा विश्वास है लोग बोलेंगे ये काल्पनिक है, ऐसा हुआ ही नहीं था। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। जैसे मैंने देखा है, जब हम चैतन्य महाप्रभु का झारखंड में जो महाप्रभु ने जो लीला की, जब वो हम स्टोरी बोलते हैं लोगों को विश्वास नहीं होता है। लोग कहते हैं प्रभु जी शायद ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि महाप्रभु ने उधर कीर्तन किया और वो कीर्तन में शेर, हिरन, अजगर, सब जानवर नाचने लगे, उनके कीर्तन में इतना शक्ति था। तो जब हम ये स्टोरी बोलते हैं लोग बोलते हैं अरे ऐसा हो सकता है क्या? अरे 500 साल पहले हुआ था, ये रिकॉर्डेड है, उनका सर्वेंट ने रिकॉर्ड किया, वो उनके साथ जा रहा था, अभी किसी को विश्वास नहीं होता है। तो उसी प्रकार आज हम बोल रहे हैं सब, क्योंकि अभी तो हमारे पास एविडेंस है सब। अगर कुछ लुप्त हो गया काल के प्रभाव से, ये सीडी और ये सब फोटोग्राफ सब अगर चला गया, डॉक्यूमेंट्स चला गया, बट इफ समबडी रिमेंबर्स और सम डॉक्यूमेंट्स आर देयर, आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ पीपल कॉल दिस एज माइथोलॉजी। हम बोलते हैं ना इंडियन माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी बोलते हैं, तो लोग इसको मैथोलॉजी बोलेंगे, क्योंकि ये इट इज, हाउ कैन दिस हैपन, इट इज टू फैंटास्टिक। इसीलिए डॉक्टर थॉमस हॉपकिंस जो इंडोलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे और वहाँ के अमेरिका के स्पिरिचुअल स्टडीज, रिलीजियस स्टडीज के चेयरमैन थे उनके डिपार्टमेंट के। तो ये थॉमस हॉपकिंस का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ये जो इस्कॉन की स्थापना हुई, ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रूफ है कि देयर इज समथिंग, एक आध्यात्मिक शक्ति नाम का कुछ चीज तो है इस जगत। ऐसा उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट बोला है कि आध्यात्मिक शक्ति नाम का कुछ तो चीज है, और ये ऐसा शक्ति है जो कोई भी पुस्तक इसको आंसर नहीं कर सकता। ये भगवान की शक्ति है। और उसने स्टेटमेंट कहा कि श्रीला प्रभुपाद का जीवन ये इस बात का प्रमाण है कि आध्यात्मिक सच्चाई है। तो अब ये कैसे हुआ, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया लास्ट 45 मिनट्स इंट्रोडक्शन था। Is that okay? So we understood illogical. What is the probability somebody going to America with all this disqualification? What would you give materially? I will give 0%. Old man from 19th century preaching to young boys who are brainwashed to not believe anybody above 30, and he is 70, double, more than double, and telling them don't take drugs, don't have illicit sex. इन बौरी एंड ईस्ट विलेज जहाँ का ये नेशनल धर्म है उनका, वहाँ पे जाके ये बोलना 1960s में, और ऐसे एमलेसली घूमना और कुछ प्लान ऑफ एक्शन नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं जेब में। तो अभी ये कहानी शुरू होती है 13 अगस्त 1965 फ्राइडे। प्रभुपाद निकले कैलकाटा से, कहाँ के लिए? अमेरिका के लिए। 1 महीने का टाइम लगता है जहाज में जाने के लिए। वो कैप्टन, वो शिप के कैप्टन थे कैप्टन पांड्या। जलदूता कंपनी, जलदूता कार्गो कंपनी था, उसके ओनर थे सुमति मुरारजी। वो पुष्टि मार्ग की वैष्णवी थी, और वो माताजी ने प्रभुपाद के भागवतम को छापने में हेल्प किया था। और प्रभुपाद ने फिर उनके वो बोला कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मेरे को सब मिल गया है, पेपर, आप क्या मुझे टिकट आपके जहाज में भेज देंगे, क्योंकि पैसा नहीं था ना कुछ। तो फिर उन्होंने अपने कार्गो शिप में एक पैसेंजर एक कैबिन दे दिया, बोला जाओ। तो ये जलदूता है,
नाउ इट इज decommissioned of course, the company is not existing anymore, but उस समय 13th August को निकले फ्राइडे. सो इट इज अ वेरी inauspicious day according to Christian calendar. 13 नंबर अनलकी है ना. तो आप देखोगे सब अच्छे अच्छे बड़े महान लोग ना इनॉस्पिशियस समय में आते हैं. जब चैतन्य महाप्रभु कभी आए, जब पूरा ग्रहण का समय था, पूरा राहु केतु का पूरा वो था, एंड कंप्लीट इक्लिप्स, तभी चैतन्य महाप्रभु का आवरण प्रकट हो. तो हमारे गुरु महाराज का वो आए December 7, 1950 को. December 7 अमेरिका में उस समय सबसे मनहूस दिन माना जाता था, क्योंकि उस दिन जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया. तो उसी प्रकार प्रभुपाद निकले 13 अगस्त को, और जैसे ही निकले शिप से 13 को निकले, और 14 अगले दिन से क्या शुरू हुआ प्रभुपाद के लाइफ में? उल्टी आना शुरू हो गया, सी सिकनेस, बुखार आने लगा, और बारिश बहुत जोर से होने लगी, तो मोर सी सिकनेस. तो ऐसा 5-6 दिन निकल गया. तो कोलंबो में आए, फिर वहाँ से अगले दिन 20 तारीख को निकले, तो जन्माष्टमी था. तो प्रभुपाद ने शिप के सारे लोगों को बुलाया अपने कैबिन में, सबके लिए हलवा प्रसाद बनाया, सबको खिलाया भगवान का प्रसाद, उनके लिए कीर्तन क्लास दिया. और उसके अगले दिन शिला प्रभुपाद का खुद का बर्थडे था. कोई नहीं, किसी को पता नहीं, चुपचाप अपने बर्थडे में क्वाइटली बैठे. और फिर 2 दिन बाद 23 अगस्त को, मतलब 10 दिन हो गया निकल के, जहाज, अभी आप देखिए, इट हैज कम टू अरेबियन सी, देन इट एंटर्ड रेड सी. इट्स गोइंग टू अमेरिका वाया एटलांटिक ओशन. तो रेड सी में जब एंटर किया, उनकी परिस्थिति, उनके हालात, उनका स्वास्थ्य जो बुरा था, इट बिकेम बैड टू वर्स. व्हाट इज इट मीन? बैड टू वर्स मतलब हार्ट अटैक. 3 बार लगातार इंटेंस चेस्ट पेन, हार्ट अटैक. और प्रभुपाद ने उस समय इतना जो हार्ट अटैक होने लगा, पेन, और किसी को बोला नहीं पेन हो रहा है. वो कैबिन में बंद करके कैबिन में बैठे थे, इंटेंस पेन हो गया. तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, बाद में कहा उन्होंने कि मैंने 3 चीजें की उस समय. एक तो मैंने टॉलरेट किया वो पेन को, आई जस्ट टॉलरेटेड. एंड सेकेंडली आई रिमेंबर्ड कृष्णा. कृष्णा, व्हाट इज योर प्लान? अरे आप ही ने मेरे को इधर लाया है, अभी अब ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? तो जब मैं ये सब स्टोरी बोल रहा हूँ ना, आप इसको नकल मत कीजिए कभी लाइफ में. आपको थोड़ा हार्ट चेस्ट में थोड़ा भी पेन आया, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए. तो मैं इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल क्या दिया, वो प्लेन और गाड़ी. हम लोग गाड़ी में कार चला रहे हैं, प्रभुपाद जी प्लेन में, तो उनका अलग लॉ है. Whenever we hear pure devotee story, never नकल. आज मैंने सुबह भागवतम क्लास दिया मंदिर में, इसी के ऊपर दिया, नकल मत करो भगवान के शुद्ध एडवांस डेवोटी. मैंने देखा कुछ एडवांस डेवोटी हमेशा बोलते रहते हैं, मैं फॉलन हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं नालायक हूँ. वो मस्त है, पर अंदर से ब्लिसफुल है वो. ऐसा उनका उनका विश्वास नहीं, मटेरियली नहीं देखने का उनको. तो उनको हार्ट अटैक हुआ, टॉलरेट किया. दूसरा क्या किया उन्होंने? कृष्ण को रिमेंबर किया. और तीसरा, पर्पस, मेरा मिशन क्या है, मैं क्या करने जा रहा हूं अमेरिका में. तो जब इतना पेन होने लगा, 2 दिन तक चला ऐसा इंटेंस पेन, अलॉन्ग विद सी सिकनेस, वॉमिटिंग, तो उस समय उनको एक विशेष सपना आया, दृश्य आया. तो सोने का प्रयास कर रहे थे, तो नींद में उनको एक स्पेशल विजन आया. एक बहुत ही आकर्षक नाव आया, और नाव चला रहे थे भगवान कृष्ण, जिन्होंने अपने हाथ में बांसुरी, मोर मुकुट, पीतांबर वस्त्र धारण किया था, और बड़े एकदम एन्चैंटिंग मुस्कान, स्माइल, एंड ही वॉज ड्राइविंग दैट बोट. और बोट चलाते चलाते कृष्ण प्रभुपाद को बोलने लगे, कम ऑन कम ऑन, मेरे बोट में आ जाओ, डोंट वरी, आई एम देयर विद यू, कुछ नहीं होगा, आई एम देयर विद यू, जस्ट कम कम कम. तो जैसे ये सपना ऐसे आया, प्रॉपर जस्ट गॉट अप, एंड ही रियलाइज दिस वाज नॉट अ ड्रीम, दिस वाज अ विजन. ही एक्चुअली गॉट अ विजन ऑफ कृष्णा कमिंग इन अ बोट एंड सेइंग, आई एम देयर, डोंट वरी, जस्ट कम विद मी इन द बोट.
फिर जैसे ही वो विजन देखा ना, और जैसे ही उठे, पेन गायब, कोई पेन ही नहीं, एंड ही बिकम फिट। अभी अगर आपको हार्ट अटैक आया और बाद में पेन कम भी हो गया, यू विल एटलीस्ट टेल सम डॉक्टर। प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया जब वो जहाज से उतरे अमेरिका में, वो डॉक्टर को देखने नहीं गए, सीधा अपने प्रीचिंग मिशन में गए हो। वी डिडंट से डॉक्टर है क्या इधर कोई पास में, नो, फोकस ऑन हिज मिशन, बिकॉज कृष्णा टोल्ड हिम ना, डोंट वरी, आई एम देयर, अरे आ जाओ, आई विल टेक यू। सो ही केम। फिर कुछ दिन बाद और एक हफ्ता निकला, तब श्रीला प्रभुपाद को एक इंटेंस पेन हुआ, इंटेंस, ऐसा पेन कभी नहीं हुआ। और ये पेन क्या था? दिस वॉज स्पिरिचुअल पेन, पेन ऑफ सेपरेशन, विरह। किससे? वृंदावन। श्रीला प्रभुपाद वृंदावन से इतना आसक्त थे, वृंदावन से इतना लगाव श्रीला प्रभुपाद को है। और यहां पर वो जहाज में, नाव में, समुद्र के तट पर, तो वृंदावन का स्मरण करने लगे, वृंदावन से विरह का अनुभव करने लगे। जो डिवोटी है ना, भगवान के शुद्ध भक्त, हमेशा वृंदावन, कृष्ण की चिंतन करते हैं, और उस चिंतन में वो विरह में और निकटता का अनुभव करते हैं। तो सेपरेशन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज वेरी गुड, बिकॉज दैट इंक्रीजेस द रिमेम्बरेंस। तो प्रभुपाद फिर रोने लगे वृंदावन को याद करते करते, उस पेन में रोने लगे कि ओ कृष्णा, मैं आपको छोड़ के कहाँ आ गया। सो ही वाज रिमेम्बरिंग कृष्णा। फिर उन्होंने, प्रभुपाद कहते हैं उनको सुकून कैसे मिला पता है आपको? कैन यू गेसेस व्हाट ही डिड बाय विच ही फेल्ट लॉट ऑफ शेल्टर? क्विज। ही स्टार्टेड रीडिंग चैतन्य चरितामृत। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का जब वो पढ़ने लगे तो उनको एक विशेष सुकून का अनुभव हुआ। और फिर उन्होंने अपने डायरी, उनका एक डायरी था, सीक्रेट डायरी, उन्होंने किसी को नहीं दिखाया। 4-5 साल बाद उनके ट्रंक में उनके शिष्यों को सफाई करते समय मिला। प्रभुपाद ने ऐसा किसी को शो ऑफ करने के लिए उसमें कुछ नहीं लिखा था, और उसमें प्रभुपाद ने लिखा था, आई हैव लेफ्ट भारत भूमि टू गो ऑन अ मिशन, आई हैव नो क्वालिफिकेशन, आई एम फुल्ली डिपेंडेंट ऑन मर्सी। फिर उन्होंने प्रेयर लिखा कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, वृंदावन को याद कर रहा हूँ, पर चैतन्य चरितामृत पढ़कर मुझे सुकून मिल रहा है। और अपने डायरी में प्रभुपाद लिखते हैं, आई हैव डिस्क्लोज माई माइंड टू माई कंपेनियन एंड फ्रेंड कृष्णा। प्रभुपाद के कंपेनियन और फ्रेंड कौन है उस शिप में? कृष्णा। सो दिस इज श्रीला प्रभुपाद मूड। और जैसे ही ये प्रभुपाद पढ़ने लगे, और उस समय प्रभुपाद को जो हार्ट अटैक निकल गया और अटलांटिक ओशन में एंटर किया। अगस्त के समय में अटलांटिक ओशन, कैप्टन पांड्या ने आके प्रभुपाद को कहा कि मैं 30 साल से इस जहाज को अमेरिका लेके आ रहा हूं, ऐसा स्मूथ सेलिंग कभी नहीं हुआ। अटलांटिक इज ऑलवेज टर्बुलेंट एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, आई एम शॉक्ड। एंड स्वामी जी, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप हमारे शिप में। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, कृष्ण चला रहे हैं शिप, आप ऐसे ही बस अपना घुमा रहे हो व्हील, दैट इज वाई अटलांटिक इज स्मूथ। सो कैप्टन पांड्या, ही एक्सेप्टेड दैट इट हैज नेवर बीन सो स्मूथ। और फिर प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा कि कृष्णा हैज टेकन चार्ज ऑफ द शिप टुडे। प्रभुपाद ना हर जगह पर, हर परिस्थिति में कृष्ण को देखते थे। हमारा क्या दुष्ट बुद्धि है कि हम कृष्ण के अर्च विग्रह को भी देखते हैं तो हम मटेरियल चीज देखते हैं। अच्छा, मार्बल कहाँ से लाया? राजस्थान में। कितने का पैसा, कितना पैसे में लिया? हम डीटी को भी मटेरियल कैलकुलेशन में लगाते रहते, और वो हर चीज में प्रभुपाद कृष्ण को देख रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन लिखा, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, ये पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी हबे। कि उन्होंने एक भजन में लिखा, वो ये मैंने जैसा बताया कि वो भजन में क्या लिखा उन्होंने, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं लिखा, वो डायरी में एक लिखा था और डायरी छिपा के रखा था, और बाद में शिष्यों को मिला, मतलब सीक्रेट, अपना हार्ट उन्होंने रिवील किया। एंड व्हेन डिवोटीज रेड इट, दे वर शॉक्ड, मतलब ऐसा डीप इमोशंस है। और वो भजन में उन्होंने क्लियरली लिखा है,
मैं ये जो भी कर रहा हूँ मेरे गुरु महाराज के आनंद के लिए कर रहा हूँ। मतलब पिछले 43 ईयर से उनका एक ही मेडिटेशन है, मैं अपने गुरु को कैसे खुश करूँ। उन्होंने मुझे बोला था अमेरिका जाओ, कैन रिपीट आफ्टर मी। तो उसमें एक स्टैंजा ये है, श्री सिद्धांत सरस्वती सच्ची सुत प्रिय अति कृष्ण सेवाय जारा तुलना। श्री सिद्धांत सरस्वती सच्ची सुत प्रिय अति जारा तुलना। से मोहंत गुरु जगत तेरा मधे उरु कृष्ण भक्ति देताय ताय। से मोहंत गुरु गुरु कृष्ण भक्ति देताय ताय। यहाँ पर प्रपद लिख रहे हैं, श्री सिद्धांत सरस्वती जो मेरे गुरु महाराज हैं वो सच्ची सुत चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय हैं। उनके जैसा कृष्ण की सेवा कोई नहीं कर सकता, कृष्ण सेवा जारा तुलनाएं। और वो जगत के सबसे बड़े गुरु हैं, और जो अभी होने वाला है चमत्कार अमेरिका में वही करने वाले हैं, मैं नहीं करने वाला हूं। से मोहंता गुरु जगत तेरा कृष्ण भक्ति दे ताय ताय, वही जाके सब जगह कृष्ण भक्ति देने वाले हैं, मैं थोड़ी जा रहा हूं। This is his absorption and his conviction that his guru is doing everything. So what a beautiful mood, isn't it? फिर वो अगले श्लोक में बोलते हैं, तारा इच्छा बलवान पाश्चायते ताना तान होए जाते गौरांगेरा नाम। पृथ्वी ते नगरादि आसमुद्र नड नाडी सकले ही लोहे कृष्ण नाम। सकले ही लोहे कृष्ण नाम। उनका इच्छा बलवान है, मेरे गुरु महाराज का इच्छा बलवान। तारा इच्छा बलवान पाश्चायते तान तान, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में गौरांगेरा नाम, चैतन्य महाप्रभु का नाम सब जगह स्प्रेड होगा, मेरे शक्ति से नहीं उनकी इच्छा से होगा। और पृथ्वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी ते नगर आदि असमुद्र नर नारी, नर नारी हर पृथ्वी के हर गांव में हर शहर में सकले ही लोए कृष्ण नाम, सब कृष्ण का नाम लेने वाले। ये प्रभुपाद पोयम में लिख रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे गुरु महाराज का ऐसा पावर है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। व्हाट इज द नेक्स्ट टाइम? फिर वो कहते हैं, ताहाल आनंद होए तबे होए दिग्विजय चैतन्यरा कृपा अतिशय। माया दुष्ट जट दुखी जगते सबाई सुखी वैष्णवेरा इच्छा पूर्ण हो। दुष्ट जट दुखी जगते सबाई सुखी वैष्णवेरा इच्छा। फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब ऐसा हरिनाम हर गांव में जाएगा, हर शहर में जाएगा, तो आगे का विजन बता रहे हैं, ताहले आनंद होए, सब खुश होने वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा सब जगह बरसेगी। जो माया दुष्ट जट दुखी, जो लोग दुखी हैं माया की वजह से, जगते सबाई सुखी, सब सुखी हो जाएंगे। और तब वैष्णवेरा इच्छा पूर्ण होए, हम सब वैष्णव की इच्छा। सो दैट मीन्स श्रील प्रभुपाद इज राइटिंग सीक्रेटली दैट हिज डिजायर इज टू सी ऑल दुखी पीपल बिकम सुखी। मतलब वो जा रहे हैं अपना बायोडेटा में डालने के लिए नहीं कि अमेरिका गया मैं, ही इज गोइंग बिकॉज ही वांट्स टू सी दुखी पीपल बिकम सुखी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक भगवान के शुद्ध भक्त में और एक भौतिकवादी व्यक्ति में। भौतिकवादी व्यक्ति को अमेरिका जाना है क्योंकि अमेरिका, अरे वाह क्या देश, पागलों का देश है वैसे, पर इसीलिए हमारे अच्छे अच्छे डिवोटी अमेरिका छोड़ के आ जाते हैं ना। प्रभु जी आ गए प्रभु जी भी आ गए, राजप्राण प्रभु भी आ गए। तो पर प्यार डिवोटी जो है भगवान का, वो जब देखता है अमीर लोगों को, पैसा आलिशान, उसको दुख होता है, अरे ये तो दुखी लोग हैं, ये कब सुखी होंगे, को सुखी देखना चाहते हो। व्हाट इज द नेक्स्ट आंसर? यू हैव पुट समवेयर?
से कार्जा जे कोरी बारे आज्ञा जदि दिलो मोरे योग्य नहीं अति दीनहीन। ताई से तो मारा कृपा मागी तेची अनुरूपा आज तुम्ही सबार प्रवीण। फिर अपना सीक्रेट बता रहे, मैं जा रहा हूँ अमेरिका शो ऑफ करने के लिए नहीं और नया देश देखने के लिए नहीं, क्योंकि जब प्रभुपाद अंधेरी में थे, अंधेरी में सिंडिया स्टीमशिप जहाज़ का उनका कॉलोनी था, तो अंधेरी रेलवे स्टेशन से वो चल के जाते थे, तो 40 मिनट लगता था चल के जाने को, क्योंकि पैसा बचाना था, बस के टिकट के लिए भी पैसा नहीं था। तो जब वो चल के जाते थे, तो जब वो सिंडिया कॉलोनी में आते थे, तो वो जो सुमति मुरारजी का सेक्रेटरी था, तो वो प्रभुपाद का मजाक उड़ाता था, अच्छा स्वामी जी आपका वीज़ा हो रहा है, अमेरिका जा रहे हैं, आपको मरने के पहले अमेरिका देखने का है, मुझे पता है सब लोगों को अमेरिका जाने का इच्छा होता है, तो आप भी वैसे ही है। वैसा वो बोलता था प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद स्माइल करते थे, हंसते थे। ही डिड नॉट बॉदर टू क्लैरिफाई। बोलते हैं ना कि अरे ऐसा बोल रहा है तुम, डिफेंड कभी प्रॉपर डिफेंड नहीं किया, उसको क्या समझाने का, क्योंकि इंडिया में सब लोग यही सोचते हैं। बट अपने डायरी में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, मैं इसीलिए जा रहा हूं, से कार जाजे कोरी बारे, उनकी आज्ञा है और मेरी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी मैं जा रहा हूं। और ये भगवान कृष्ण को लेटर लिखा है उन्होंने, ये जो प्रेयर है ये कृष्ण को लिख रहे हैं कि अगर आपकी कृपा होगी, आप सबसे इंटेलिजेंट है, प्रवीण है, अगर आपका इंटेलिजेंस है, आपका कृपा है, तो ही मैं मिशन में सक्सेसफुल होऊंगा। मैं वैसे कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ इच्छा भी नहीं है मेरा अमेरिका जाने का, बट इट्स माई गुरुज ऑर्डर। एंड देन वो क्या करते हैं, वो प्रेयर में और इंटीमेट चीजें लिखते हैं। नेक्स्ट, ओ या वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन रिपीट आफ्टर मी दिस वेरी। अभी क्या हो गया प्रेयर में ना, भजन में वो लिख रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है इसको। पहले क्या किया, गुरु को ग्लोरीफाई किया, गुरु को, गुरु की कृपा, पर भजन किसको लिख रहे हैं, तो कृष्ण को लिख रहे हैं, मेरे गुरु की कृपा है, ये है वो है। फिर कृष्ण को बोल रहे हैं, कृष्णा आई लव यू। आप लव लेटर लिखते हो ना अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, तो यहाँ पर कृष्णा क्या लव, प्रभुपाद जी क्या लव लेटर लिख रहे हैं, देखिए कृष्ण को क्या लिख रहे हैं, तुम्ही मोरा छीड़ा साथी भूलिया मायारा लाठी खाई आची जन्मा जन्मांतरे। छीड़ा साथी भूलिया मायारा लाठी खाई आची जन्म जन्मांतरे। आजी पुनः येसु जोगा जदि होए जोगा जोगा तबे पारी तुहे मिली बारे। पुनः येसु जोगा जदि होए जोगा जोगा तबे पारी तुहे मिली बार। तुम्ही मोरा चीरा साथी, यू आर माई बडी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। भूलिया मायारा लाठी, आपको भूल गया मैं तो माया का लाठी पड़ रहा है। खाई आची जन्मा जन्मांतरे, जन्म जन्मों से मैं लाठी खा रहा हूं माया का, क्योंकि मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को भूल गया हूं। पर आज पुनः सुजोगा, आज क्या ऑस्पिशियस डे है कि आपका बहुत याद आ रहा है। तबे पारी तुहे मिली बारे, कब मैं आपको मिलूंगा, आई वॉन्ट टू बी विद यू। दैट इंटेंस हैंकरिंग टू बी विद कृष्णा, एंड दैट हैंकरिंग। और एक बहुत इंटीमेट चीज लिखते हैं जो प्रभुपाद ने कभी पब्लिक में बोला नहीं है, ये प्राइवेट भजन में लिखा है, ये अभी आने वाला है। तुम्हारा मिलने भाई आभार से सुखा पाए, गोछाराणे घूरी दिन भोरा। तुम्हारा मिलने भाई आभार से सुखा पाए, गुरी दिन भोरा। कटा बने छुटा छुट्टी बने खाए लुट्टा पुटी, से दिन कबे हबे मोरा। तुम्हारा मिलन भाई, ओ माय डियर फ्रेंड, तुम्हारा मिलन है भाई आभार से सुख पाए। आई वॉन्ट टू फील कंप्लीटली सेटिस्फाइड इन मीटिंग यू एंड आई वॉन्ट टू गो विद यू। मैं आपके साथ कहाँ जाना चाहता हूँ,
गोचारणे घुरी दिन बोरा। मैं गोचारण में आपके साथ जाना चाहता हूँ। मैं आपके साथ गायों को लेके वृंदावन के वनों में गाय चरना चाहता हूँ। और क्या करना चाहता हूँ? कट्टा बनने छुट्टा छुट्टी, बने खाए लुट्टा पुट्टी। फिर हम लोग खेलेंगे उधर वृंदावन में। फिर मेरा जो डब्बा है टिफ़िन बॉक्स, वो आप छीन लोगे, फिर मैं आपका छीन लूँगा। फिर हम लोग मस्ती करेंगे, कुश्ती करेंगे, प्ले विल रेसल। से दिन कबे हबे मोरा। वो दिन कब आएगा? जब मैं वृंदावन में गऊओं को चराने के लिए आई विल कम विद यू। मतलब ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं लिखा है, ये अपने दिल से लिखा है ऐसा भजन। फिर लिखते हैं एंड में, लास्ट लाइन है, आजी से सुविधा ने तुम्हारा स्मरण बेलो, बड़ो आशा धाकी लामता। आजी से सुविधा ने तुम्हारा स्मरण बेलो, बड़ो आशा धाकी लामता। आमी तोमार नित्य दास, ताई कोरो एते आश, तुम्हें बिना अन्य गति ना। ये लास्ट स्टैंजा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पहले वाले में क्या लिखते हैं प्रभुपाद? आई विल रेसल विद यू, आई विल प्ले विद यू इन वृंदावन, आई विल एंजॉय विद यू। तो हमारे बहुत लोग, हम लोग ना मेंटल लेवल पे भक्ति करते हैं, हमको लगता है कि हम भी कृष्ण के साथ ऐसे मस्ती करेंगे। तो प्रभुपाद का मूड देखिए, ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट हिज पोजिशन। आजी से सुविधा ने तुम्हारा स्मरण, हे कृष्ण आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ। बड़ो आशा दाखिलाम, इतना आशा, डिजायर बढ़ रहा है। बट आई रिमेंबर आमी तोमर नित्य दास, मैं आपका इक्वल नहीं। मैं कौन हूं? दास। दास अभी नहीं और बाद में दोस्त, ऐसा नहीं, नित्य दास, हमेशा मैं आपका दास। आमी तोमर नित्य दास, ताई कोरो एते आश। फिर भी मेरी एक आशा है, आपके साथ एक निकट का संबंध हो जाए बस। तुम्ही बिना अन्य गति नाई, आपके बिना मेरा कोई होप नहीं। आई हैव नो अदर डेस्टिनेशन। दिस वॉज अ ब्यूटिफुल प्रेयर श्रीला प्रभुपाद रोट इन इंटेंस हैंकरिंग टू बी विद कृष्ण। और जा कहाँ रहे हैं? वृंदावन नहीं जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। पर आप सोचिए, मैं पॉइंट ये मैंने क्यों भजन आज गाने के लिए इसमें डाला, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड किस चेतना में वो अमेरिका जा रहे हैं। अभी हम जाते हैं प्रचार के लिए किधर भी, हम किस चेतना में जाते हैं? नया जगह देखेंगे, नया लोग मिलेंगे, क्या एडवेंचर होगा, क्या एक्साइटमेंट होगा। वी ट्राई टू बी प्रेजेंट, माइंडफुल, ये सब हम बात करते हैं। अरे कृष्ण का है आपके माइंडफुलनेस? तो आई ऑलवेज ट्राई टू, आई ट्राई टू रिमेंबर दिस, उनका अलग ही लेवल का कॉन्शियसनेस। तो फिर ये शिप आगे गया, फिर फाइनली वो बॉस्टन में कॉमनवेल्थ पायर में दिस फर्स्ट। अभी प्रभुपाद को अमेरिका का पहला दृश्य दिख रहा है जब अटलांटिक क्रॉस करने के बाद। दिस इज इंटरेस्टिंग। अभी तक प्रभुपाद को अमेरिका के बारे में कुछ पता नहीं, और शिप में आते आते उन्होंने बॉस्टन का पूरा डैजलिंग लाइट्स देखा, रात का समय था, फुल अमेरिका का। प्रभुपाद बाद में बोले कि इतना डैजलिंग लाइट, वो पूरा लाइट में प्रभुपाद, देखिए प्रभुपाद का विजन देखिए। प्रभुपाद ने सब लाइट देखा उधर, एंड प्रभुपाद सेड ही सॉ डार्कनेस। ही रियलाइज्ड दिस प्लेस इज डार्क, there is no Krishna here. And why it is dark? Because of ignorance. अज्ञान के कारण पूरा अंधकार छाया हुआ इस देश में। वो पहला उनका इंप्रेशन, ये मैं बोल रहा था कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब वो भौतिक ऐश्वर्य देखते हैं, वो इतना बड़ा बड़ा सब चीज देखते हैं, उनको कुछ अट्रैक्शन, उनको उल्टा दया आती है। जैसे एक बहुत बड़े बड़े करोड़पति है, मैं उनका सब डिटेल नहीं बोल सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, आई कैन बी इन ट्रबल। तो हमारे गुरु महाराज और हमारे गौर गोपाल प्रभु उनके खास मित्र हैं, खास। तो उनके बच्चों का विवाह सब में वो जाते रहते हैं, फैमिली का थोड़ा अच्छा जान पहचान है। तो मैंने देखा इनके साथ प्रसाद लेते समय, एक बार महाराज ने खुद बताया था, ऐसे मुंह से निकल गया उनका, ही इज अ प्रिजनर ऑफ सक्सेस। ऐसा व्हाट अ स्टेटमेंट है ना।
द प्रिजनर ऑफ सक्सेस। एंड देन ही सेड, बेचारे क्या करें, करोड़पति है। देखिए कितना बड़ा अंतर है, बेचारे करोड़पति। हमारा कैसा रहेगा, वाह करोड़पति। वो जो करोड़पति के पहले जो फीलिंग रहता है अंदर, अरे वाह आज करोड़पति से मिलने वाले हैं, वाह अंदर रहता है। पर जब भगवान का शुद्ध भक्त मिलता है करोड़पति को, पहले अरे बेचारा करोड़पति, दया करते इसके ऊपर थोड़ा। तो ये भगवत गीता में भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है वर्ष। तो ये आप प्लीज रिपीट कीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है। तो इससे मालूम पड़ता है प्रभुपाद का ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये भगवान ने बताया है गीता में। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। What is night for all beings is the time of awakening for the self-control, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. या निशा, निशा मतलब नाइट, सर्वभूतानाम सब लोगों के लिए जो रात है, तस्याम जागृति संयमी, उस स्पेस में जो सेल्फ कंट्रोल्ड आदमी वो जगा रहता है। तस्याम जागृति भूतानी, जब दुनिया के लोग जगे रहते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, वो मुनि सो जाता है उस समय। आप देखोगे ना, सब जब लिकर बार सब एक्टिव रहता है, 11 बजे 12 बजे पीक पे रहता है, तब डिवोटी क्या करते हैं, गहरी नींद में, दे आर ब्लिसफुली स्लीपिंग। एंड मॉर्निंग 4 o'clock 3:30, हमारे कुछ डिवोटी तो 2:30 को उठ जाते हैं। जब ये मटेरियलिस्टिक लोग थक के सोने जाते हैं 2:30 3 o'clock, तभी डिवोटीज उठ जाते हैं। क्या है, उल्टा है ना पूरा प्रैक्टिकल। तो सिमिलरली अभी अमेरिका के लोगों को लग रहा है ये सक्सेस है, ये सिविलाइजेशन है, ये सफलता है हमारी, ऐसा डैजलिंग लाइट्स, ऐसा कभी प्रभुपाद वृंदावन में रहते थे कभी देखा नहीं ऐसा सब। पर प्रभुपाद को वहां पर क्या दिख रहा है, डार्कनेस। भगवान के शुद्ध भक्त की दृष्टि उल्टा है। जैसे देखिए, एक बार प्रभुपाद डेट्रॉइट में लेक्चर दे रहे थे। डेट्रॉइट नाम सुना है, कौन से देश में आता है, अमेरिका, सबको पता है ना। मायापुर किधर आता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। अभी जो गए मायापुर उनको पता है, मायापुर बंगाल, वेस्ट बंगाल में आता है, बांग्लादेश के बॉर्डर के पास में। एनीवे, तो जब प्रभुपाद मायापुर में लेक्चर दे रहे थे एक बार, ये बहुत सुनिए, बहुत दिलचस्प बात है। प्रभुपाद मायापुर में लेक्चर दे रहे हैं, सब डिवोटीज बैठे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, सो वी आर एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द वर्ल्ड। सेंटर, वो तो रिमोट कॉर्नर है। और वही प्रभुपाद डेट्रॉइट में थे एक बार। डेट्रॉइट अमेरिका सब जानते हैं, उधर लेक्चर दे रहे, फिशर मैंशन, ह्यूज, और वो उसका अलग ही स्टोरी है, कैसे वो मिला वो सब। वहां पे प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं, बोलते हैं, सो वी आर इन दिस रिमोट प्लेस ऑफ डिट्रॉइट। ऐसा एक कोई गांव में आ गए, ऐसा करके उसको उड़ा रहे हैं। तो प्रभुपाद के लिए डेट्रॉइट वाज ऐसा एक इनसिग्निफिकेंट गांव जैसा कोई जगह है, और मायापुर वाव। तो वहां पर प्रभुपाद, अब तो अभी बॉस्टन को देखे, जब देखे ना वो लाइट वाइट्स को सब देखे, तो फिर प्रभुपाद ने एक और भजन लिखा उस समय, बड़ो कृपा कोइलो कृष्णा अधमेरा प्रति, कृष्णा मेरे ऊपर कृपा करो, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेरा प्रति। कीला गिया नीले हेता कोरो एबे गति। My dear Lord Krishna, you are so kind upon this useless soul, but I do not know why you have brought me here. Now you can do whatever you like with me. अभी देखिए, अमेरिका को देखने के बाद प्रभुपाद का फर्स्ट रिएक्शन है, क्यों लेके आए मुझे इधर। अंदर भी नहीं गए अमेरिका में, वो लाइट देखा बस, अरे क्यों अंदर, कीला गिया नीले हेता, इधर क्यों लेके आए मेरे को। पर आपका कुछ तो मकसद होगा।
अभी करो एभे गति ना, यू डू व्हाट यू वांट, मेरे साथ जो करना है आप करो। ये वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट भजन है प्रभुपाद ने लिखा हुआ। ये अमेरिका को देखने के बाद फर्स्ट ग्लांस में उन्होंने लिखा। फिर आगे ऐसा बहुत सारे स्टैंडर्स है, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि हमको पास्ट टाइम्स डिस्कस करना है। पर आपको ये सब जो हमारा लेक्चर्स होता है ना इधर, ये फिलर्स रहता है ताकि यू गो एंड स्टडी रीड मोर ऑन योर ओन। जैसे भगवद गीता क्लास भी जब हमारा होता है वीकली क्लास, वो हम ब्रीफ में बोलते हैं ताकि आप जाके बाद में और पढ़ें। तो फिर प्रभुपाद आगे उसमें लिखते हैं, we will stand the second and third line. नचाओ प्रभु, नचाओ से माते, काष्टेरा पुतली जता, नचाओ से माते। Oh Lord, I am just like a puppet in your hands. So if you have brought me here to dance, then make me dance, oh Lord, make me dance as you like. नचाओ प्रभु, मुझे नचाओ आप। कास्टेरा पुतली, जो पपेट है उसको आप नचाओ, मैं एक कास्टेरा पुतली हूं। तो दिस इज हिज प्रेयर। अमेरिका में क्यों लेके आए, कुछ तो आपका प्लान है, अभी करो मेरे साथ जो करना है। फिर प्रभुपाद क्या लिखते हैं, लास्ट स्टैंजा इसका, ये भजन का लास्ट स्टैंजा। भक्ति नाई वेद नाही, नामे खूब धरो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक कोरो। I have no devotion, nor do I have any knowledge, but I have strong faith in the holy name of Krishna. I have been designated as Bhakti Vedanta, and now, if you like, you can fulfill the real purport of Bhakti Vedanta. तो वो बोल रहे हैं मेरे भक्ति भी नहीं है, वेदांत भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, पर मेरे को बड़ा नाम दिया, खूब नाम धरो। भक्ति वेदांत नाम दे दिया मुझे, टाइटल दे दिया, मेरे अंदर भक्ति भी नहीं है, वेदांत। दिस इज ह्यूमिलिटी। ये प्राइवेट में देखिए, हमारा ना एक पब्लिक रेस्पॉन्स होता है चीज़ों के लिए, एक प्राइवेट रेस्पॉन्स होता है। पब्लिक में हम्बल रहना बहुत आसान है, प्रभु जी आई एम योर सर्वेंट, नो प्रभु आई एम योर सर्वेंट, नो प्रभु आई एम योर सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, नो प्रभु आई एम सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। ये सब प्राइवेट में अच्छा चलता है, पब्लिक में अच्छा चलता है। प्राइवेट में उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, वो क्या सोचता है अपने बारे में, उसको मैं दिखाता हूँ। ये प्राइवेट में चलता है। तो ये प्रभुपाद अभी प्राइवेट में देखिए क्या बोल रहे हैं, भक्ति नहीं, वेदना नहीं, कुछ नॉलेज ही नहीं, खूब नाम धरो, बट कृष्णा भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो, आप मेरे नाम को सार्थक कर सकते। और जो लास्ट प्रभुपाद ने वो आपने डाला है क्या, प्रभुपाद का सिग्नेचर देखिए, ये पोएम के बाद प्रभुपाद ने सिग्नेचर, नो दिस इज नॉट द सिग्नेचर आफ्टर द पोएम, यू डिडंट पुट इट, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली प्रभुपाद ने ये पोएम के बाद क्या लिखा था पता है आपको, साइंड as this is exact what he wrote, most unfortunate and insignificant beggar, AC भक्ति वेदांत स्वामी। ये सिग्नेचर के पहले ऊपर क्या लिखा, ये यूर एवर वेल विशर है ना, ये प्रभुपाद लेटर्स में लिखते थे अपने शिष्यों को। अपने शिष्यों को जब भी लेटर लिखते थे वो लिखते थे कि आई एम योर एवर वेल विशर। पर जब कृष्ण को लेटर लिखा उसके ऊपर ये लाइन नहीं था, उसके ऊपर ये लिखा था साइंड एज मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड इनसिग्निफिकेंट बेगर। ये उनका पर्सनल मूड। एक्चुअली प्रभुपाद ऐसे थे, एक बार प्रभुपाद ने सीक्रेटली एक डिवोटी को, तमाल कृष्ण महाराज को बताया, मतलब प्रभुपाद ने इसको एक्चुअली अवॉइड कर रहे थे आंसर करने को। तमाल कृष्ण महाराज बार बार पूछ रहे थे आपका कृष्ण के साथ क्या रिलेशन है, ऐसा कुछ पूछते रहते थे, कभी प्रभुपाद अवॉइड कर रहे थे डिस्कशन। फिर प्रभुपाद ने उनको बोल दिया, और लेटर में है वो, देयर वाज नेवर अ मोमेंट इन माई लाइफ when I did not remember Krishna, and there was never a time when I forgot Krishna। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी देखा पहले लेटर, वो डायरी में लिखा था कि टुडे आई रिवील्ड माई हार्ट टू माई फ्रेंड एंड कंपेनियन, एंड दिस फ्रेंड एंड कंपेनियन इज नाउ रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। तो क्या हो गया, वो शिप बॉस्टन के बाद वापस बेसिकली
न्यूयॉर्क हार्बर के उधर गए, वो उधर रुका। देन फ्रॉम देयर ही हैड टू गो टू बटलर पेंसिल्वेनिया, जहाँ पर उनके होस्ट थे। तो अब जब वो निकले हार्बर में बाहर, प्रभुपाद को पता नहीं था कि भाई राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है। तो अग्रवाल का, गोपाल अग्रवाल ने एक टिकट एक ट्रैवल एजेंट कंपनी के एक एजेंट को भेजा था, एक ट्रैवल कंपनी के एजेंट को, प्रभुपाद को रिसीव करने के लिए। एक गोपाल अग्रवाल कौन है? बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी। अभी इतना बड़ा है प्रभुपाद का पास टाइम, बोलते जाएंगे तो खत्म ही नहीं होगा, बट वी हैव टू टेल समथिंग इंपॉर्टेंट। तो एक अग्रवाल करके बिजनेसमैन थे मथुरा में। तो प्रभुपाद जी बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे अमेरिका जाने के लिए, कोई हेल्प करेगा क्या, हेल्प करेगा क्या, इधर उधर वो ट्राई करते थे। तो एक प्रोग्राम में जहाँ पे गवर्नर के लिए उन्होंने, प्रभुपाद ने एक भजन संध्या ऐसा कीर्तन प्रोग्राम लेक्चर रखा था। तो उधर ये बिजनेसमैन मथुरा वाले अग्रवाल जी, तो उनसे बात करते करते वो अग्रवाल जी ने बोला मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, गोपाल अग्रवाल, गोपाल उसका नाम। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा, तो मुझे वो स्पॉन्सर कर सकता है क्या? तो मिस्टर अग्रवाल ने कहा हाँ, मैं तो सब साधु लोगों को लेटर देता रहता हूँ, तो आपको भी लेटर दे देंगे एक। वो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने सबको, इतने सारे लोगों को लेटर दिया था, कोई गया ही नहीं अमेरिका, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशन था उसमें। बहुत लोगों को दिया लेटर, स्पॉन्सर लेटर, लेटर ऑफ एश्योरेंस, बट नोबडी वेंट टू अमेरिका। तो उनको लगा ये स्वामी जी भी ऐसे ही है, तो उनको भी लेटर दे दिया कि मेरा बेटा है गोपाल, बटलर में, पेंसिल्वेनिया में, अब उधर जाइए, जाना है तो लेटर दे दिया ऐसे। और उनको मालूम नहीं था कि ये अलग टाइप के व्यक्ति है ये पूरा पकड़ लेंगे उसको। वो लेटर लिया, फिर उसका सब ऐसा सिस्टमैटिक डिटेल में प्रभुपाद का कैसे अमेरिका जाने का उन्होंने कैसे सब प्लानिंग किया। तो वो लेटर लिया, तो गोपाल को भेजा, तो गोपाल अग्रवाल को फीदा। क्या प्रभुपाद कितना मास्टरफुल है, देखिए लेटर आ गया कि डियर गोपाल अग्रवाल, दिस इज योर फादर्स लेटर एंड सो दिस इज फॉर रिकमेंडेशन सब, क्योंकि वो रिकमेंडेशन भेजते थे अपने बेटे को, उसके पिताजी भेजते रहते थे, तो इनका भी रिकमेंडेशन आ गया। एंड प्रभुपाद इतने पंक्चुअल, जैसे मिस्टर अग्रवाल का लेटर पहुंचा, अगले दिन प्रभुपाद का लेटर पहुंच गया कि आई एम कमिंग ऑन दिस एंड दिस डेट, लैंडिंग एट बटलर पेंसिल्वेनिया, अपना बटलर पेंसिल्वेनिया, मुझे आना है आपके घर पे। और ये, और उसके बाद प्रभुपाद ने अपना फोटो भी डाल दिया ताकि देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग हिम। पक्का अपना फोटो वोटो डाल के भेजा, क्या पक्का काम करते थे प्रभुपाद। तो फिर वो फोटो देखा, तो फिर उसने देखा अरे तो कोई मिस्टेक ही नहीं हो सकता। अभी तो वो एजेंट को बोला ऐसा एक सैफरन में एक बुड्ढे से स्वामी जी रहेंगे, उनको आप लेना। एंड गोपाल अग्रवाल, इट्स नॉट दैट ही वांटेड प्रभुपाद टू कम, क्योंकि ही वाज हैप्पी, अमेरिका में मस्त थे वो, मथुरा के थे वो, हालांकि धामवासी थे वो लोग, धाम में ऐसा नॉन वेजिटेरियन सब खाते नहीं है, पर उधर गोपाल अग्रवाल सब मांस सब खाते थे वो। और उन्होंने एक अमेरिकन लड़की सैली से शादी कर लिया था, तो सैली के साथ घर पे रहते थे। तो सैली को बोला कि मेरे पापा के दोस्त आ रहे हैं, तो फोटो दिखाया, तो वो भी बिविल्डर हो गई, ऐसा कभी देखा ही नहीं ऐसा कॉस्ट्यूम में किसी को, सैफरॉन साधु। तो अभी गोपाल अग्रवाल को लगा अरे बाप रे, दिस इज नन ऑफ माई डूइंग, आई मीन आई डिडंट डू दिस, माय फादर डिड दिस एंड आई मीन ही जस्ट सेंट हिम। सो एंड देन ही रियलाइज्ड ही इज कमिंग एंड व्हाट टू डू, ही इज कमिंग। तो फिर आ गए प्रभुपाद, बाहर आए, बाहर वो एजेंट ने बस में बिठा दिया। तो बस से अभी कुछ 4-5 घंटे का जर्नी है, वो सुबह कुछ 4-5 बजे आ गए थे, वहां से वो बस में बैठ के अभी वो कुछ घंटों बाद वो पहुंचेंगे बटलर गांव में। तो जैसे ही बस में बैठे, and the bus entered a tunnel, and then Prabhupada saw sun started rising, and then Prabhupada saw America in full form. He saw trucks, he saw auto industries everywhere, huge factories, he saw oil tankers, he saw skyscraper buildings which he had never seen, and most amazing, many Indians feel 4-lane traffic, disciplined, huge, ऐसा कभी देखा ही नहीं, क्योंकि एंड दैट ट्रैफिक 120 किलोमीटर्स पर आवर, कार्स आर स्पीडिंग, ऐसा कभी इंडिया में देखा ही नहीं प्रभुपाद ने। एंड स्टील टावर्स, जायंट टावर्स, नेवर बिफोर श्रीला प्रभुपाद हैड विटनेस्ड सच मैग्नीट्यूड, बिकॉज प्रभुपाद कहां से आ रहे हैं, वृंदावन, और अभी मैनहट्टन को देख रहे हैं, क्रेजी। सो प्रभुपाद बोले बाद में, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वाज वेलकम टू द लैंड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस,
रजोगुण और तमोगुण के शहर में आपका स्वागत है, ऐसा प्रभुपाद को सुनाई दिया। किसी ने बोला नहीं, बट प्रभुपाद को लगा कि रजोगुण और तमोगुण उनका स्वागत कर रहा है। क्योंकि प्रभुपाद कहाँ रहते थे? वृंदावन। वृंदावन में क्या ट्रैफिक उस समय, तो बस वो बैलगाड़ी होता था, बैलगाड़ी में जाओ, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो वो गिर जाते थे, कोई बैलगाड़ी से। एक बार गिर गए थे प्रभुपाद बैलगाड़ी से, फिर उठ के वापस बैठ के वापस बैलगाड़ी चला। इधर 120 के स्पीड में गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो खत्म। और वहाँ पे वृंदावन में आप जो आए थे, आपने देखा होगा क्या बोलते हैं लोग एक दूसरे को, ऑटो रिक्शा वाले क्या बोलते हैं? राधे राधे, जय श्री राधे। और वृंदावन में जितना बॉम्बे में आपको फिल्म का पोस्टर और गंदा गंदा पोस्टर नहीं दिखेगा, उसका 4 गुना ज़्यादा वृंदावन में आपको भागवत सप्ताह का पोस्टर दिखेगा। सब जगह भागवत भागवत। तो कृष्ण के जन्मभूमि, कृष्ण के लीला स्थल से अमेरिका में जा रहे हैं, जहाँ पे बड़े बड़े शराब के साइन, मीट ग्लोरीफाइड। और प्रभुपाद देखकर सब मुस्कुराने लगे, क्योंकि प्रभुपाद को लगा अरे बाप रे, मैं तो पूरा इसका उल्टा सिखाने आ रहा हूँ यहाँ पर। ये जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं उसका पूरा उल्टा सिखाने वाला हूँ। एंड प्रभुपाद फेल्ट कंपैशन, बिकॉज प्रभुपाद ना प्रहलाद महाराज के मूड में थे। प्रहलाद महाराज अपने एक प्रेयर में नरसिम्हदेव को बोलते हैं कि कुछ लोग हैं जो भजन करने के लिए वन में जाते हैं और भगवान का बस चिंतन भजन करते रहते हैं, पर हे नरसिम्हदेव, प्रहलाद बोल रहे हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं शहर में जाना चाहता हूँ जहाँ पे फूल्स एंड रास्कल्स रह रहे हैं, और उनको पकड़कर आपके पास लेके आना चाहता हूँ। तो ऐसा वो, तो उसमें प्रभुपाद एक भजन, आई डोंट नो दैट भजन इज देयर, एवं दैट वर्स इज देयर, भागवतम वर्स, यू कैन रिपीट आफ्टर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेस, फेमस वर्सेस ऑफ भागवतम। सॉरी प्रभु, आई एम कॉजिंग यू लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, पीपीटी, दिस, सो मेनी थिंग्स। द वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर, वो अपने गुरु महाराज को याद करते हैं वो भजन में। नहीं, इट्स फॉरगेट इट इफ इट्स नॉट देयर। हाँ, गुड, थैंक यू। एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे, निपतितं प्रभवाहि कूपे, कामाभिकाममनुय प्रपतन् प्रसंगात्। कृत्वामसात् सुरसिना भगवन् गृहीता, भगवन् गृहीता, सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम। प्रभुपाद अमेरिका में जाके इस प्रहलाद महाराज के इस प्रेयर को याद करते हैं, जहाँ पे लास्ट लाइन में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, हाउ कैन आई गिव अप माई सर्विस टू माई गुरु, बिकॉज मैं एक पतित कुएं में, एक गिरे हुए कुएं में पड़ा हुआ था, मेरे गुरु ने कृपा से मुझे उस कुएं से उठा लिया है, और अब मैं अपने गुरु को अपने कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए उनका स्मरण चिंतन करके उनकी सेवा के लिए अमेरिका में आया हूँ। वेरी क्लियर अबाउट इस मूड। तभी गोपाल अग्रवाल इतने एम्बैरेस हो गए, आ गए प्रभुपाद जी टाइम पे, सब बैग वैग लेके, उनका एक सूटकेस था, वो है क्या फोटो सब जोरदार था, वो प्रभुपाद का एक ट्रंक, एक फोटो, और उनका एक मंकी कैप था, क्लासिक अम्ब्रेला, सब वृंदावन से, एंड ही इज सच अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैन, एंड ही कम्स टू बटलर, एंड गोपाल अग्रवाल इज एम्बैरेस्ड बिकॉज ही डिडंट, हाउ विल ही एक्सप्लेन टू हिम हिज फ्रेंड, बिकॉज वो बटलर पूरे गांव में कोई इंडियन नहीं था, ये गोपाल अग्रवाल वाज द ओनली इंडियन, और उसकी शादी भी हुई सैली से, तो अमेरिकन, तो कोई इंडियन आदमी नहीं है उधर, और उधर एक इंडियन है, और वो भी उसका फादर का फ्रेंड ऐसे वेशभूषा में आता है। तो ऐसे प्रभुपाद घूमते थे अमेरिका में। तो अभी उसने क्या किया, यू नो व्हाट गोपाल डिड, घर पे नहीं रखा प्रभुपाद, उसको लगा कि अभी कैसे घर पे रखेंगे, तो पास में YMCA का रूम्स था, YMCA बॉम्बे में बहुत है ना, यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, तो YMCA का वहाँ पे छोटा सा रूम लिया, बोला आप स्वामी जी इधर रहो, और प्रसाद और खाना पीना हमारे घर पे, बस आप बस रहने के लिए इधर रहो, हमारे घर पे मत रुको। ऐसा नहीं बोला घर पे मत रुको, आपका रहने का जगह ये। प्रभुपाद had no issues, प्रभुपाद अमेरिका में, he had a mission, so he came. So YMCA में क्यों रखा? Because he was wondering how will I explain him to my friends, कि मेरे फ्रेंड्स आते रहते हैं घर पे, कभी शराब पीते हैं, कभी खाते हैं,
तो आएंगे, चीयर्स, और इधर ये स्वामी जी कौन है, ये कहाँ से आ गए, क्या है? तो आई विल एक्सप्लेन, आप उधर ही रहो। और सैली देखिए क्या स्मार्ट है, जब सैली को मालूम पड़ा, सैली अग्रवाल गोपाल की वाइफ को जब फोटो देखा उसने बोला ओ गॉश शी इज गोइंग टू कम, हे यू नॉट स्टे हियर YMCA। एंड सैली अग्रवाल प्रोएक्टिव, उसने तुरंत जो लोकल न्यूज़पेपर है उधर, वहाँ का जो न्यूज़पेपर था बॉस्टन का क्रॉनिकल, ऐसा कुछ न्यूज़पेपर था, वहाँ पे बड़ा एडवर्टाइजमेंट डाल दिया कि एम्बेसडर ऑफ भक्ति योगा इज कमिंग टू बटलर, फोटो के साथ। क्यों? ताकि कोई उनको पूछेगा नहीं, वो देख लेगा, पहले ही पेपर में देख लेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। बताना नहीं पड़ेगा ना लोगों को, एक्सप्लेन करना पड़ता ना नहीं तो, कि क्या है, क्यों है ऐसे, कहाँ से आए। तो अभी पेपर में आ गया ना पहले ही, भक्ति होगा मैफा करके। साली अग्रवाल सो इंटेलिजेंट, शी डिडंट वांट एनी कंफ्यूजन। और उसने वो क्या समझती थी, साली अग्रवाल को लगा कि एक बूढ़े से स्वामी जी है, मेरे पति के दोस्त है, मेरे पति के पापा के दोस्त है, ओ ही इज नॉट कम टू मेक एनी वेव्स, वो सिंपल छोटे से आदमी, अपना कुछ तो पुस्तक लिख रहे हो, पुस्तक छापने के लिए, कोई पब्लिशर ढूंढने के लिए आए हैं अमेरिका। उसको मालूम नहीं था वो क्या क्रांति मचाने आ रहे हैं। उसको लगा ऐसे यस कम, इज नॉट गोइंग टू मेक एनी वेव्स, दिस इज व्हाट शी वाज थिंकिंग। बट वो जब प्रभुपाद को देखी माताजी ने, सैली अग्रवाल ने, और प्रभुपाद का जो व्यवहार, बोलना, उठना, बैठना, तो इंप्रेस हो गई वो। एंड शी इमीडिएटली स्टार्टेड फीलिंग अफेक्शन लाइक हर ओन फादर। एंड उसने जो सोचा था पूरा उल्टा निकले। प्रभुपाद वाज वेरी सोशल एंड ही रिमेंबर्ड नेम्स इमीडिएटली, अरे ये वो है, ये है। तो जैसे 3-4 दिन रहने लगे, प्रभुपाद को सब समझ गया। एंड बाद में सैली अग्रवाल बोली, ये स्वामी जी वॉज द इजीएस्ट गेस्ट आई एवर हैड इन माई लाइफ। ऐसा इजी गेस्ट मेरे घर पे आया कोई नहीं आया, क्योंकि प्रभुपाद अपना बस चैंटिंग करते रहते थे, किसी को डिस्टर्ब ही नहीं करते थे घर पे। और जो भी कुछ चीजें हैं ना घर पे, अमेरिका का है वो, इंडिया में कभी देखा नहीं, तो वो सीखने के लिए बहुत उत्सुक थे। जैसे वैक्यूम क्लीनर कभी देखा ही नहीं, तो बड़े ध्यान से प्रभुपाद देखते थे, अच्छा ये कैसा होता है, कैसे ऑपरेट होता है, अच्छा हाँ जब कचरा साफ होता है। तो शी वॉज फैसिनेटेड दैट ही इज इन अ लर्निंग मूड, वांटिंग टू नो एवरीथिंग, अंडरस्टैंड हाउ इज दिस कंट्री रनिंग, व्हाट हैपेंस। तो इफ यू गोइंग टू वेस्टर्न कंट्रीज, लॉन्ड्रोमैट होता है उधर, वो कपड़ा धोने के लिए वो लोग एक उसमें डालते हैं, फिर पैसा डालते हैं, कपड़ा लेते हैं। तो लॉन्ड्रोमैट देखा, पूरा स्टडी किया, ओ ऐसा सिस्टम है इधर। फिर सुपरमार्केट, इंडिया में तभी सुपरमार्केट का लोगों को स्पेलिंग भी मालूम नहीं था, तो उधर सुपरमार्केट बहुत कॉमन था, तो सुपरमार्केट में जाने लगे, अच्छा ऐसा होता है। फिर प्रभुपाद उनके लिए कुकिंग करते थे घर पे, उनके लिए उनके घर में किचन में प्रभुपाद कुकिंग करते थे। और फ्रिज खोला तो फ्रिज के अंदर मांस का टुकड़ा पड़ा था। तो जैसे प्रभुपाद ने दरवाजा फ्रिज खोला और अंदर मीट था, तो सैली अग्रवाल को मालूम था कि उसके पति पूरे मथुरा के सब ब्राह्मण, वेरी नाइस फैमिली, वो लोग सब घर पे मांस वास नहीं खाते, अभी तो मेरे संग में हो गया सब। तो अभी अगर उसके पापा आते थे इधर, तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो शी बिकेम, अरे शी बिकेम एम्बेरेस्ड। एंड प्रभुपाद इतने कूल थे, प्रभुपाद ने नोटिस किया, प्रभुपाद ने कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिया फेस में, प्रभुपाद ने खोला, मीट था, और सैली अग्रवाल बिकेम एम्बेरेस्ड एंड इमीडिएटली प्रभुपाद सेड, नो नो नो, डोंट थिंक ऑफ इट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डोंट गेट वरीड, नो इट्स ओके, इट्स ओके। तो शी फेल्ट सो रिलीव्ड। मतलब ये प्रभुपाद का सेंसिटिविटी देखिए। तो ही डिडंट से एनीथिंग, एंड देन सैली गॉट अटैच्ड टू प्रभुपाद। वो क्या मिसकंसेप्शन था। और फिर जो कुकिंग किया, और ऐसा प्रसाद, मालूम है प्रभुपाद सेड ओनली अ लेजी मैन कैन नॉट कुक, वो प्रभुपाद का डेफिनेशन था। प्रभुपाद सेड इस्कॉन इज, वो ना वो लोग बोलते हैं इस्लाम मुस्लिम रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन होता है, क्रिश्चियन रिलीजन होता है, लोग बोलते हैं इस्कॉन इज हिंदू रिलीजन। प्रभुपाद सेड नो, इस्कॉन इज किचन रिलीजन। हमारा कौन सा धर्म है? रसोई घर का धर्म। इसलिए हमारे प्रोग्राम में प्रसादम को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। प्रसादम के ऊपर डिस्कशन होता है बहुत, प्रसादम के ऊपर मीटिंग होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, लोगों के संबंध टूट जाते हैं। कभी मैं बताऊंगा यहाँ पे 6 साल में क्या क्या हुआ है प्रसादम को लेकर। वो स्टोरी आप सुनेंगे, आप बोलेंगे ये प्रसाद के लिए। तो हमारा क्या करें, किचन हमारा कर्म है, वो किचन रिलीजन है हमारा। तो प्रभुपाद गेव टॉप प्रायोरिटी टू प्रसाद।
ऐसा भगवान कृष्ण को अर्पण करो और खिलाओ। तो उनके घर पे गए, उनके फ्रिज से मांस को साइड में करके सब्जी निकाल के ये सब करके उनके लिए खिचड़ी सब्जी इंडियन डिशेस खिलाया। सैली अग्रवाल खा के पूरा अटैच हो गई। शी बिकेम इमोशनल, शी कनेक्टेड टू हर ओन फादर इन लॉ थ्रू प्रभुपाद। शी डिडंट फील एनीथिंग। और तभी सैली अग्रवाल को उनको गोपाल और सैली को एक बच्ची हुई थी छोटी सी, वो 3 साल की थी। उसका नाम था पैमिला। ये दूसरा है ब्रज, ये अभी पैदा हुआ था और चलना सीखा था। ब्रज दूसरे लड़के का नाम, दूसरा बच्चा लड़का था उसका नाम ब्रज रखा था, और बड़ी बेटी थी उसका नाम पैमिला रखा था। तो वो स्कूल जाती थी नर्सरी में। तो जब वो आई स्कूल से, तो स्कूल में उसको जीसस क्राइस्ट के बारे में सिखाया। वो अमेरिका है, तो 3.5 साल की लड़की थी, वो 3.5-4 साल की लड़की थी। तो उधर जीसस क्राइस्ट सब सुना, तो घर पे आई, प्रभुपाद को देखा, तुरंत उसके मुंह से निकल गया स्वामी जीसस। तो फिर 1 महीना पूरा प्रभुपाद को स्वामी जीसस करके बुलाते थे। एंड प्रभुपाद वाज सो कंफर्टेबल, ही वाज प्लेइंग विद ब्रज एज इफ ही इज फ्रॉम देयर ओन हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं। देखिए, जब प्रभुपाद उनके घर में थे, वो वैसे थे जैसे वो उनके ही हैं। जैसे गोपाल अग्रवाल के पिता आएंगे तो कैसे रहेंगे, प्रभुपाद वैसे ही उनके साथ थे। हालांकि वो सन्यासी हैं, स्ट्रिक्ट हैं, पर एक शिष्टाचार, एक जो एक उधर संवेदनशीलता बोलते हैं इसे, जो सेंसिटिविटी है। सन्यासी को बच्चों से क्या लेना देना, बच्चे, परिवार, विवाह है, ये सब क्या है, ये तो सब अटैच्ड है वो लोग। बट अरे ह्यूमन इमोशंस, जज्बात, फीलिंग्स, इसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद वाज वेरी 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 सेंसिटिव एंड पैमिला गॉट अटैच्ड। और 1 महीना ऐसा निकल गया और प्रभुपाद ये सब कर रहे थे, पर माइंड में चल रहा था। 3 महीने का वीजा मिला था, नवंबर में खत्म होने वाला था, सितंबर अक्टूबर नवंबर का वीजा था। 1 महीना पूरा ऐसे निकल गया। और पूरे 1 महीने में प्रभुपाद कैलकुलेट करते थे अभी कहाँ प्रचार हो सकता है। और बाहर से क्या करते थे, घर पे ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे इनके फैमिली मेंबर। और 1 महीने बाद गोपाल अग्रवाल को और घर वालों को बोल दिया, मैं कल न्यूयॉर्क जा रहा हूं। दे वर शॉक्ड, आर यू श्योर? न्यूयॉर्क कैसे जाएंगे? आपका यहाँ पे बस होगा ना, बस डिपो होगा, कोई बस होगा, बस में चला जाऊंगा। बट आप न्यूयॉर्क जाएंगे? हाँ, कोई जान पहचान है? नहीं, मुझे एक बार मैं प्रोग्राम कर रहा था प्रयाग में, तो उधर किसी ने, एक सन्यासी मिले थे मुझे, उन्होंने एक कांटेक्ट दिया था न्यूयॉर्क में, कोई तो एक योगा टीचर है। तो उन्होंने बैग से निकाला, उसका नाम लिखा था, डॉक्टर राममूर्ति मिश्रा, योगा स्टूडियो न्यूयॉर्क, एड्रेस दिया था। तो इनका नाम दिया है, तो इनके पास चला जाऊंगा मैं। आप इनको जानते हो, इनको मिले हो, इनसे बात किए हो? नहीं, जरूरत नहीं, वो रहेंगे ना उधर, उनके उनके फ्रेंड है वो सन्यासी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट दिया। पर आप न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हो? नहीं, मुझे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि प्रचार करना तो अभी न्यूयॉर्क जाना होगा। न्यूयॉर्क इज द कैपिटल ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज वेयर माया इज मोस्ट पावरफुल एंड दैट इज वेयर हम जाके झंडा गाड़ेंगे कृष्ण भक्ति। देखिए, प्रभुपाद इतना प्यार से रह रहे थे इनके घर पे, बट ही वॉज नॉट अटैच्ड। हो गया काम, टाइम हो गया तो सी ही was not like, he had not come to America to have loving relationship with family, love them, किया जो loving care सब दिया, बट वो उनका लाइफ का गोल नहीं था। सन्यासी हो गया, टाइम अभी निकल। तो जो प्योर डिवोटी होता है ना, मैंने देखा है मेरे गुरु महाराज को भी, जब वो फैमिली के बाद बात करते हैं तो ऐसा बात करते हैं, ऐसा प्रेम करते हैं, नेक्स्ट सेकंड निकल गए तो वो पूरा ऑफ, दे आर ऑफ फ्रॉम हिज, बिकॉज ही इज नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। आई हैव सीन माय स्पिरिचुअल मास्टर कंप्लीटली अटैच्ड बट टोटली डिटैच्ड। ये मैं तो प्रभुपाद के बारे में क्या है, मैं अपने गुरु महाराज को देख के प्रभुपाद के बारे में समझता हूँ। When he is with you, he makes you feel as if he is so attached to you. जैसे हमारे बंशीधर प्रभु एक बार पुणे यात्रा में हजारों लोगों के बीच में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, महाराज मेरी पत्नी अगर मेरे से पहले मर गई तो मेरा क्या होगा, और मैं अगर पहले मर गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा? तो महाराज हजारों लोगों के बीच में महाराज बोलते हैं, और आप दोनों मेरे पहले चले गए तो मेरा क्या होगा? आपको याद है वो लेक्चर? बाप रे, मतलब ऐसा लोग
5 मिनट तक तालियां बजा रहे थे वो ऐसा, और स्पॉन्टेनियस ये सब है ना, ये लेक्चर जब हम प्रिपेयर करके बोलते हैं वो स्क्रिप्टेड रहता है, बट एक्चुअल डिस्कशन इज क्वेश्चन आंसर विच कम्स आफ्टर दैट, है ना, वो स्क्रिप्टेड नहीं होता ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा प्रभु जी ने, तुरंत तो अच्छा लगा, क्या प्यार करते हैं महाराज, वाह। तो आप पहले का लेक्चर सुनेंगे, 5 स्टार में एक लेक्चर है, महाराज बोल रहे हैं, तो मैं पूरा जा रहा था तो मैं आपके बारे में सोच रहा था, ये रूप रघुनाथ क्या प्रचार कर रहा है, याद है गौरांग प्रभु का कॉलेज, वो राधा रानी और मुरलीधर के बच्ची कैसी है राधिका, और तो सबको लग रहा है वाह 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 हमारे महाराज हम तो कितना प्यार करते हैं, इधर ही रहेंगे, हरी बोल हरी बोल। अभी महाराज पूरा अमेरिका प्रचार करने का फोकस कर रहे हैं, full, he is like, I love you but I am on a mission, I love my mission more than you, but when I am with you I am yours। तो प्रभुपाद का ऐसे ही था, सैली अग्रवाल को ऐसा प्यार दिया, उसके बच्चे के साथ खेला, सब किया, ऐसा नहीं कि उधर बस गए, चलो अंतिम दिन बटलर में बिताएंगे जीवन का सेकेंड इनिंग्स, नहीं गॉन ऑन अ मिशन टू न्यूयॉर्क, बाय बाय, नेवर केम देयर अगेन। Prabhupada was very clear. He is alone with Krishna. यदि तोर डाक सुने क्यों नाशे तो बे एकला चलो रे। He was alone going to New York with no मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है। प्रभुपाद का ऐसा था, nobody. Now सैली एंड गोपाल अग्रवाल ने एंड में पूछा आप न्यूयॉर्क, मतलब they were wondering, पूछा नहीं, वो सोच रहे थे why did he come here? एंड वाई इज ही गोइंग टू न्यूयॉर्क, उनके दिमाग में फिट ही नहीं है। आप उनके दृष्टि से सोचो थोड़ा, वाई डिड ही कम हियर एंड वाई इज ही गोइंग टू न्यूयॉर्क, दे डिडंट नो। एंड इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रभुपाद, प्रभुपाद ऑल्सो डिडंट नो। प्रभुपाद सेड, इफ प्रभुपाद वाज आस्क्ड, प्रभुपाद वुड से, आई केम एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कृष्णा एंड आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कृष्णा। फिर वो न्यूयॉर्क में गए, उधर डॉक्टर राममूर्ति मिश्रा थे कि नहीं थे, और उनको मिले तो क्या हुआ वो सब हम कल डिस्कस करेंगे, सेम टाइम नॉट सेम टाइम, मच अर्लियर, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट हैपेंड इन राममूर्ति मिश्रा स्टूडियो। उनके योगा स्टूडियो में गए प्रभुपाद, फिर वहाँ पे उनका कैसे फिर प्रचार शुरू हुआ, फिर कैसे पूरा कोलैप्स हुआ, फिर कैसे कहाँ कहाँ गए भटके, फिर कैसे उनके लाइफ में उनकी सब प्रॉपर्टी चोरी हो गया, उनका टेप रिकॉर्डर चोरी हो गया, रास्ते में आ गए, 1 रुपया जेब में नहीं था, और सोचे कि मैं क्या करूं, फिर वो जहाज शिप पोर्ट में गए, नेक्स्ट शिप इंडिया कब जा रहा है, मैं वापस चला जाता हूं, ये सोच के गए, फिर इंडिया नहीं गए, फिर वापस आ गए। तो उस समय जो उनका स्ट्रगल हुआ वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।